Hey, hi Lina, what's up? Hey, hello, Ace. Hello Can there. you hear me? What's up? Not much. Where are Yeah, I these can. What's people? up? Where are the guys? Let me tag them, yeah? Yep, let's just तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ बस ठीक ठाक आप बताओ आपको बुलाते हैं. मैं भी ठीक हूँ. क्या चल रहा है? अभी तो I was just हमने इतने preparing for टाइम पे something. I टैग was doing किया. some investigation. Yeah. So I was doing some investigation, some going I was looking up for some information. किस चीज का? ये चैनल क्या बनाया? Okay, so this is what we're doing, right? हम्म. So basically there are topics that happens in India and to the world at large, and we somehow forget the relevance of it over time, right? Over a time period, we kind of forget what happened in the past, and we move on with our life. हम्म. We have made this channel so that we friends were there, so that we can like go ahead and we can bring those topic up and talk about other things. Now, if I remember last time you were asking like since now let's first introduce ourselves, right? So this will be I will be Ace, and I stay in India. And Alina, let's introduce yourself. ए, क्या क्या इंट्रोडक्शन? क्या मैं कोई लेडी डियाना थोड़ी हूँ. So I just Okay, want to it is know the okay. We are recording. what you guys are up about. So I do want to know about this topic जो तुम लोग कुछ बात कर रहे हो. Okay, so Let's have a regular discussion. So, hi, Hana. hi Hana, welcome. So this is another friend, Hana, and Hana, let's introduce yourself. So Hello, Akka. and Apka here is Apka. Apka, let's introduce you as well. Thank you. Hello, Anna. We are basically four friends. We have met, I believe, 3 4 years now. I think few others will know each other more than that time. And what we'll be doing is that we'll be bringing up topics about discussions that we do, and we will be putting it out to the general audience, to the youth mainly, so that they are aware of what is going on. And our main focus will be once again topics which are out of relevance right now, which was very relevant yesterday, to continue to have that continuity, so that people are still in focus. So Lena, Akka, what are your thoughts on this? ये अभी channel मैंने देखा तुम लोगों ने बनाया है, and I quite have no idea. Like how is it affecting you? What is this? Who started it? Why they started it? So कुछ clear picture बताओ मुझे थोड़ी. I don't understand this. नहीं तो समझना क्या चाह रही हो तुम कि चैनल क्यों बनाया? बस नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ क्या है ये तुम कह रहे हो ये अगर हम करते so as a step by step मुझे बताओ कि ये चीज़ है, मैं तो ऐसे करता मगर ये ऐसे की गई थी. नहीं इसमें सबसे So पहले in like simple, what are you wanting to learn? Like हम लोग चैनल किस लिए बनाया है, या ये डिमोनेटाइजेशन टॉपिक नहीं चैनल नहीं, मुझे ये बताओ ये क्या है, डिमोनेटाइजेशन क्या है जो हमने न्यूज़ में सुना. अच्छा, वो ये so था you want to कि talk about, okay. या Okay, तो so sorry to interrupt you. All right, so okay, so the first topic that we choose to talk about is demonetization. Now, you're not from India, right? no, I'm not familiar with So this. yeah, right. So no. So क्या है ये आपका? तुम्हें कैसे पता चला फर्स्ट टाइम कि ओह समथिंग लाइक दैट इज गोना हैपन? तुम्हारा क्या फर्स्ट रिस्पॉन्स था? तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि ये क्या होने वाला है हमारे कंट्री के अंदर? हाउ इज गोना अफेक्ट मी? तुम्हारे क्या नहीं फर्स्ट थॉट्स थे? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हाउ व्हाट वर योर फर्स्ट रिएक्शंस इनसाइड यू?
नहीं, मेरा फर्स्ट रिएक्शन बिल्कुल आएगा और मैं तुमको 100% दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम इस बारे में आहना से बात करो। उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि तुम एज से बात करो और फिर अच्छा उसके बाद मैं दूँगा। ठीक है, हाँ ना तुम बताओ। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मतलब पहले आहना शुरू करे और फिर हम्म। एज बात करे और फिर मैं बोलूँ कुछ। क्योंकि तो मुझे बहुत कुछ कहना है इस बारे में और सिर्फ इससे हम्म, रिलेटेड नहीं है, इससे कोरिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा ये तुम्हारी आवाज थोड़ी बेटर हो गई है, पता है अभी थोड़ी कम हल्की आ रही थी, अब एकदम क्लियर आ गई है एक सेकंड में, है ना इस। तो हाँ ना आप ये बताओ लड़की अब की आवाज़ सुन के मेरे साथ मत Yeah, बोलो। and we are live, by the way. अच्छा So, हम्म सो हाँ ना फर्स्ट टाइम when you I mean, heard we can do our crazy shit, but I'm just letting you know that we are live. ठीक है, we gonna do the crazy shit anyway like we always do. Exactly. हाँ ना True. when you जब तुमने ये फर्स्ट टाइम सुना है वर्ड, न्यूज में सुना होगा कहीं भी, क्या I remember still the day जब रात के 8 o'clock I came back from my office and हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं न्यूज़ पे बोल रहे थे कि अब जो है नोट नहीं चलेंगे 500 and 2000 के. I don't know, maybe is this a prank or something? So I asked my father कि ये क्या चल रहा है बॉस, ये क्या हो रहा है. And so when this news came, we were kind of in a shock because we don't know what's going on. And this was एकदम से आपको बोल दिया कि आपके पास जो भी पैसे हैं, like in cash we talking about, वो नहीं चलेंगे. And India is a cash-rich cash-rich country as we all know. तो knowing that वो अपने आप में काफी एक शॉक था, जो उस टाइम तो honestly speaking अमीना को समझ ही नहीं आया था कि what is going on. And at the same time I'm just clearing my glass because I just broke some glass out of my hand. So off to it. थोड़ा कुछ बताओ तब तक मैं जरा अपना ग्लास साफ कर लूँ. oh are you okay? Yeah, I'm fine, I'm fine. All right. What do you mean glass साफ कर लूं? I कांच का think so. ग्लास था, मैं दवाई खा रही थी और मेरे हाथ से गिर गया वो और वो टूट गया. वो डिमोनेटाइजेशन का बताते मुझे ग्लास अरे साफ कर चोट तो रही नहीं थी. लगी? चोट तो नहीं नहीं लगी नहीं आना? नहीं लगी, नहीं 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 चलो नहीं, अल्लाह ठीक का है. शुक्र है। ठीक है, ठीक है। चलो हाँ, दिस कैरी इज ऑन। दिस इज ये बहुत ही छोटा सा बिट बताया, वेरी फर्स्ट रिएक्शन. आपका आप बताओ इस. आपका चोट लड़कियों को नहीं लगता, चोट लड़कियां देती हैं. Anyway, हाँ अलीना क्या कर रही थी आप? कैन यू रिफ्रेन फ्रॉम दैट डिस्कशन? वो ही एक और दिन लड़ाई हो. अजीब. देखो लड़ाई वाली बातें मत अच्छा करो, क्या बोल रही थी? रिकॉर्डिंग कराओ. बदतमीज. अच्छा नहीं, ओके. बोलो क्या बोल रही थी? हाना जस्ट टोल्ड मी कि उसने सबसे पहले ये न्यूज में सुना एंड शी वाज लाइक वेट, इज इट अ प्रैंक, इज इट रियल, इज इट फेक? Now you need to tell that when did you hear it for the first time and what was your first thought about this? So let me give you some like some retrospect, right? That point I was I believe I took a break from my life. Let's just say that. So basically, I was not doing anything. Right, I had some investments in cryptos and stuff. So I was basically living on that. Yeah. So and like we did have cash in our house, but like those were basically rents that were coming from our property, and it was not. Uh, it was between 1 and 1.5 lakhs. It was not that huge money that we had in cash, right? So now to give you that retrospect, now why I give you that is uska I'll tell you later. So the date was 8th November, right? 8th November 2016. Mhm. So there was a demonetization was India, and so now let me just go ahead and like tell you what is demonetization. Demonetization is when some money, some bank notes are out of commission, right, by the choice of the government. So that's what happened. So I remember I was probably talking to my brother or doing some stuff. My dad said, "You know what is happening? Kya hua hai?" Like, what's the television? Turned it on, and I saw the interview live. So basically, this is what happened at I believe 8 or 8:30. Okay,
Narendra Damodar Modi, he came and he said, "Mitron, आज से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे." I was like, okay, Oh no. what does, yeah, so I'm like, what does that supposed to mean? Like, I was not aware of demonetization. Okay. So this is what happened, that जो 500 और 1000 के नोट थे of the Mahatma Gandhi series, it was demonetized on 8th November 2016, with which had adverse effect, and we are still facing that problem even today in India. Now, there was demonetization which was done twice in the past, one in 1946, another one is 1978, which demolishes banknote for 1000, 5000 and 10,000. But ये हुआ ऐसे है that it was all kept under the blanket, and we were giving only so much time to deposit our old notes and to get the new notes. Now, what was the reason behind it? There were basically three reasons that the government said, that there were three motivations. One is to curtail shadow economy. Okay, that is black money. So the concept was, and that is what Narendra Modi said, our Prime Minister said, that जिनके पास लिक्विड कैश है वो बैंक में जाके जमा नहीं करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उसका सैलरी से लाइक हम लोग मैच करके देखेंगे, या फिर वी विल इज announced income source, and if it is not matching, tax file से अगर tax returns अगर match नहीं करते, then we will, it is black monies, and then there will be steps taken to that person. So he said that either वो नदी में बहा देंगे, नहीं तो घर में जला देंगे, right? So that is one reason. The second reason was to increase cashless transaction. Okay? And number three is to reduce the use of illegal and counterfeit cash to fund illegal activities and terrorism. जो illegal activities होते हैं, terrorism जो हो रहा है, mainly terrorism को रोकने के लिए, ये तीन चीजें गवर्नमेंट बोल, right? And that is why it happened. It is a catastrophic failure. Okay? And I would like to come and touch that point individually, how the demonetization failed drastically, how the government kept shifting their narrative, their motivation, and their reason for doing demonetization, and how the government for 2 years, or even now, tried to call it a success, wherein it was a catastrophic failure. But before I do that, I would have Aapka like as his take on the demonetization. Acha, I'm a little lost, but it's okay. It's gonna get clear by the end of this Like, session. what is But first मुझे ये बताओ कि हमारा ये live क्यों नहीं है? मुझे तो live नहीं नजर आ रहा. What's happening? YouTube. okay? So ये part edit करना होगा. क्यों We नहीं? are recording. It's okay. We are recording right now. अरे क्यों edit करना होगा? Oh, we're not So- live. You're recording. Yes. Oh shit! Yeah, I don't know why. Yeah, we just I ठीक है. forgot. I forgot. All I'm right, so let's sorry. continue. And live continue. ढूंढ That's रही fine. हूँ. Let's Okay. Yeah, Shall yeah, just cut that part. okay. Let's. Everything You is can fine. I just forgot. Sorry. So what is your? That's fine. So what is your? What was your like question? What? So why sentence am I has- lost is that okay? I'm imagining, right? मैं ये सुन रही हूँ that these bills are not gonna work anymore. And what? मतलब what's my next step? Okay. So the next step was, there were two notes, right? That is introduced in the market. One is a new 500 rupees note, and second is 2000 rupees note, right? So 500, 1000 note, there were no denomination in 2016 more than 1000 rupees. So Wait. we have So- to take our 500 and 1000, we have to deposit in the bank, and we have to take the new currency, Yeah. right, Hmm. out from the What- ATM or Card. from the bank counter, which will be in form of new money, the new 500 rupees note and the 2000 rupees note that the government printed. Acha. So first, I got. तो वो उसको replace कर देगा.
So one part of Ahana I got कि what when she came to know about this, what was her reaction? I got your bit. Now I need to take आपका's bit that कब आपका तुमने ये सुना first time and what went on in your brain कि ये क्या है तुम बताओ. आहाना का ग्लास टूट गया था और छत टूट गई थी जिसपे ग्लास गिरा था, तो पहले उससे पूछ लो। क्या बोल रहे हो वो इशी? आहाना वो अपनी आधी अच्छा बात कह के कह रहे लेकिन हो कि पूरी बात कह कंप्लीट नहीं कर पाई ले. थी ना, Okay औरतों okay. की आवाज हमेशा दबाई जाती है। तुम क्या तुम भी बात औरतों की आवाज दबा रही हो। मैंने क्या ये बात नहीं कर मैं रहे नहीं हैं कहा. आप दबने अपनी दूंगा। शपथ? हाँ आना कैरी ऑन। नहीं, सो और जैसे आना बेचारी औरत, मैं बेचारी आई अबला नारी, अंडरस्टैंड आपका। आई एम द अबला नारी ऑफ द हाँ राइट, प्लेटफॉर्म, सो या। आहाना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओह थैंक हाँ यू। हम साथ है तुम्हारे। तो हाँ, सो टू एड अप टू एस की बात पे मैं बोल रही हूँ कि जो 500 और 1000 के नोट जब हमें लेने थे, तो जैसे एस ने बोला ना जितना आसानी से कि 500 और 1000 के या 2000 के नोट हमें बैंक से लेने थे, इट वॉजंट दैट इजी अलीना, बिकॉज वी हैव टू गो इन टू लाइन, वेट फॉर आवर्स। लोग जो है बेहोश हुए जा रहे थे वहाँ पे खड़े खड़े, क्योंकि यू कैन जस्ट इमेजिन कि वन डे यू आर हैविंग 10,000 की गड्डी इन योर हैंड। लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पीपल, बिकॉज इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उस टाइम पे थे। आज की डेट में पेटीएम है एंड देयर अदर गूगल पे एंड ऑल दैट स्टफ, दिस ऑल कम आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन, बट बिफोर दैट लोगों को पता ही नहीं था ये सब का। और खासकर जो लोअर मिडिल क्लास है उन वो लोग तो कैश में ही डील करते थे। सो आई रिमेंबर मेरे ऑफिस में पीएन्स हैं, कुछ है, एंड दे वर कमिंग टू मी इन द मॉर्निंग कि ये क्या हो गया, बिकॉज फॉर us still it is like okay, we have credit cards, we have cards, we can manage it, but for the people जो lower middle class background से हैं, वो लोग तो बेचारा अपने दिन की, कैन यू इमेजिन कि जो एक पियून है वो अपने दिन की आई विल छुट्टी ऐड करके समथिंग वंशी, I'll वो add लाइनों पे something. खड़ा है, लोग बेहोश हो रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। सो इट्स लाइक इट्स अ चैलेंज। आदमी अपनी नॉर्मल जिंदगी की जद्दोजहद छोड़ के पैसा लेने में लगा हुआ था, वो भी अपना ही How much, पैसा। Anna, tell me something. Anna, tell me something. How much difficulty you have to go through? You as in Anna have to go through. नहीं, हम डिफिकल्टी के बारे में बाद में उस पॉइंट पे आते हैं. सो No, that's what it's just happened. to That's what happened when you एक heard about it. हाँ. just to no, just to touch on that topic, right? Me personally, I had a friend, right, who used to work in a very well-reputed bank. Okay? I entire in the entire time span, right? And I generally always used to have, like, mainly my credit cards and online mode में ज़्यादा पहले से ही ज़्यादा करता था. So I do not transact a lot in cash anyway. However, like होता है ना, mainly for like very expensive. So I never have to be there in the ATM, right? Because I have a friend who works in the bank. वो रात को अब 2 हफ्ता में 3 हफ्ता में आता था, मिलता था, मैं दे देता था, वो मुझे दे देता. So the point being, I'm very sure आना ने भी उतना स्ट्रगल नहीं किया होगा, आपका नहीं भी किया. The problem is when this happened, the middle class of the society, they did not have any problem, right? The people who are millennials, जिन लोगों के लिए ये किया गया था, allegedly those people who had black money, they didn't have to go through it either. और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, how is it was a failure. प्रॉब्लम उन लोगों को हुआ था जो लोअर मिडिल क्लास से है, ठीक है, जो मतलब मैं जैसे अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, लाइक जो लोग बाजार करते हैं ना, लाइक हम लोग का, लाइक आई एम फ्रॉम कोलकाता, सो अभी भी कोलकाता में बाजार होता है, गो देयर, यू बाय फिश एंड वेजिटेबल्स स्टफ. So they did not know what to eat tomorrow, literally, because every day they have 5,000 rupees, they buy vegetables of 5,000 rupees, they come to the shop, they sell it, and out of the profit they get, they buy something, go to him and eat. That is literally how they work each and every day. So now they already got that vegetable, right? And people are not able to buy them, and this literally happened, they were giving it away because it will rot, right? So दे दे रहे थे, भाई आप लेके जाइए, पैसा नहीं देना, बाद में दे दीजिए. Now the point is, they didn't know what to eat tomorrow, and this happened for 6 days, right? And one more thing is about transport.
like when this happened, right? So All India Motor Transport Corporation जो है, ठीक है, it said that 8 lakh truck drivers were affected by the shortage of cash, and about 4 lakh trucks was stranded on highways in Gujarat and Delhi Mumbai highway, because they couldn't pay the tolls, because the toll companies, they were not accepting. So there was this huge gap in the supply chain for basic requirements, right? So I'll come to that point and I'll extend that, but let's hear it from Aapka. What was his like primary experience during the process? दुनिया चाहे जितनी कोशिश कर ले आहना, मैं औरत की आवाज दबने नहीं दूंगा। आहना, तुम अपनी बात कहो। आहना, तुम कंप्लीट कर रही थी अपनी थॉट प्लीज। आहना, तुम अपनी बात कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ आहना, तुम डरो मत। She already completed, I guess. No, you completed नहीं it. नहीं, आना तुम बोलो। आहना, कैरी ऑन। क्यों झगड़ा लगा रहे हैं मेरा और आना ना? नहीं, हम झगड़ा नहीं लगा रहे। नहीं वो अपनी कुछ बात कह रही आना थी, वो जी, बीच में कट गई थी आप बात, उसकी बात कट गई थी, पहले उसकी बात सुन लेते हैं। हाँ आना, कैरी ऑन, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। तो मेरा पॉइंट यही था कि हम लोगों को एज ए सेड कि हम लोगों को यस आई एग्री कि हम लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम उन लोगों को हुआ जिन बेचारों को कोई मतलब और वास्ता ही नहीं है डीमोनेटाइजेशन से। एग्जैक्टली, एंड दैट इज समथिंग जो जब हम जैसे लोग लाइक वी नो नथिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड वी ऑल आर लाइक हम लोग अपने अपनी दुनिया में अपने अपने लाइफ में मस्त हैं, हम समझ सकते हैं। तो द पॉलिटिशियंस एंड स्पेशली द पीपल हु हैव लाइक Okay, so hearing all this, जो मैं सोच रही हूँ, क्या होगा उससे। हाँ हाँ। So the first thought, even as a politician, because after all, चाहे कितने भी गलत सही हम हमारे politicians, but like when you're doing something, you know कि आप ये कर रहे हैं, and this is a group of people you're doing this to, so थोड़ी सी consideration तो जरूर होगी उनके mind में भी, and so okay, let's hold it to that point कि तुम्हारा ये था, बिल्कुल नहीं तुमने था, सुना और तुम confused थे, and बिल्कुल this is what happened after 5 or बिल्कुल 6 days, right? So बिल्कुल नहीं था consideration. बिल्कुल नहीं था, और Okay, नहीं okay. बिल्कुल नहीं था, वो चीज आपका बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, So बिल्कुल नहीं था। hold it. एस तो उसको 5 or 6 days के आगे ले गया. We would get to that later. But अभी जो सुना और जो तुम्हारे दिमाग में चला उस टाइम पे, तुम्हें नहीं पता 5-6 दिन बाद ये होना है. You might be like thinking ABC, but you don't know what's gonna happen. So आपका तुम बताओ, what was your first thought when you heard about it? कहाँ सुना, कैसे सुना? ये तो सारी बातें हो चुकी हैं कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज भी दिए हैं, अपनी परेशानियां भी शेयर करी हैं। बहुत सारे मतलब मीडिया के चैनल्स जो थे वो सब लगे हुए थे इसी चक्कर में, कुछ लोग प्रो में थे, कुछ अगेंस्ट में थे, इसमें नहीं पड़ते हैं। लेकिन मेरा कुछ और मेरा जहन है, जो मेरे जहन में कुछ और चीजें आ रही हैं। जैसे मैं तुमको एक फोटो पोस्ट करता हूँ, इस औरत को कितने लोग जानते हैं? आहना और एस, तुम तो खैर, हाँ तुम्हें क्यों नहीं डिमोनेटाइजेशन का पता है? क्योंकि तुम अमेरिका में रहती हो और तुमने ये चीज बताई नहीं है लोगों को, अलीना, वरना लोग ये सोचेंगे कि तुमको क्यों नहीं पता है डिमोनेटाइजेशन। हमको पता है, तुमको क्यों नहीं पता? इस औरत को कौन कौन जानता है? मैं नहीं तो जानता, डाला है मैं भी नहीं इसको जानती। देखो ये एडिट करना, people don't give a shit कि किसको क्यों नहीं पता, they I don't open my मुझे location. मेरी बात तो कहने दो पूरी। हम्म, पीपल जो कहें वो कहें, मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ ना, मुझे मेरी बात तो कहने दो। मैं नहीं जानती इसको। हाँ तो बस बात खत्म। मेरा यही सवाल था, कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता, बस यही सवाल था मेरा। इस औरत का नाम है उमा खुराना। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ 2007 में, 2007 7 सितंबर 2007 में ये औरत मैथ की टीचर है और सर्वोदय कन्या विद्यालय में पढ़ाती है और वहां पे ये अपने बच्चियों को पढ़ा रही थी। और कुछ लोग, मतलब मॉब जिसे कहेंगे, लिंचिंग जो करते हैं लोग, मतलब उसमें औरत भी थे मर्द भी थे, उन लोगों ने आके पूरा स्कूल घेर लिया, इसको ढूंढने लगे। इसको ढूंढा भी, जब पुलिस ने काफी कोशिश करी उसके बावजूद उसको ढूंढा भी गया। और उसके बाद फिर इस औरत के साथ ये हुआ।
ये फोटो जो आई है आपके पास, इसके कपड़े फाड़ दिए गए, इसको सड़क पे नंगा कर दिया। भाई लेकिन उसका एलिगेशन ही फेक था. I do not know. Yeah, that भाई भाई, followed. I पूरी can बात तो खत्म हो जाए भाई, एलिगेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं जो बात कर अच्छा. रहा हूँ भाई, मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा सीरियस है। और ऐसा नहीं कि डिमोनेटाइजेशन से वो कनेक्टेड नहीं है, इसका कनेक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे कि मैं कनेक्टेड है? कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ इन चीजों को। तो ये जो औरत थी, ये अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, इसको वहां से घसीटा गया, वहां से इसके कपड़े फाड़े गए, इसको मारा गया, और इसको मारने वाले मर्द भी थे और औरत भी थे। प्रॉब्लम क्या थी कि 30 अगस्त को, 30 अगस्त 2007, और तब ये मोदी की गवर्नमेंट नहीं थी, यानी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो उस वक्त मनमोहन सरकार थी, यानी यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2007। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं, ना हम प्रो गवर्नमेंट है ना हम अगेंस्ट गवर्नमेंट, हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। उस जगह पर उस जगह पर नहीं, एक चैनल था लाइव इंडिया, उसके अंदर एक स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है जिसमें उसके रिपोर्टर का नाम था प्रकाश सिंह। वो एक स्टिंग ऑपरेशन करता है, उसमें ऑपरेशन में ये दिखाया जाता है कि ये जो औरत है ये प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा दे रही है, ये जो बच्चियां वहां पढ़ने आ रही हैं उनको प्रोस्टिट्यूट बना रही है। और उसमें से एक लड़की थी जिसको उसने कैमरे पे आके ये चीज एक्सेप्ट करी कि हाँ, ये जो मैडम थी ये मुझे भेजती थी, धंधा करवाती थी और अपने पैसे अपने पास रख लेती थी। जैसे ये चीज लीक आउट हुई, यानी जैसे ये चीज मीडिया के अंदर आई, लोग पहुंच गए मारने। कौन? वो जो बच्चियों के माँ बाप थे, बच्चियों के माँ बाप। वो कोई और मॉब नहीं था, ऐसा नहीं था कोई अलग से लोग आ गए थे, वो वही लोग थे जिनके बच्चियां थी या जिनके रिश्तेदार थे। उन लोगों ने आके मारा, पीटा, नंगा किया इसको। और ये सब करने के बाद जब पुलिस ने केस अपना दायर कर दिया, कोर्ट में डाल दिया, कोर्ट ने 14 दिन का रिमांड दिया, कोर्ट ने इसको तिहाड़ जेल में भेज दिया, वहां डाल दिया इसको। जब पुलिस ने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी करना था उसने जब किया, तो वहां पे वो लड़की मिल गई जिसका नाम रश्मिका था शायद, या राशिका था। हाँ, तो खैर वो तो स्टिंग ऑपरेशन था, एंड देन वाज like found out it was fake, and then the police was also sued. Anyway, वो like how is it connected? पहले बात पूरी हो जाए तभी तो कनेक्ट करूंगा ना। उसको जब पकड़ा, उस लड़की को जब पकड़ा, उस लड़की ने जब बताया उसको कि नहीं ये ऐसा था कि मैं तो मीडिया की हूं, उससे सारी चीज लीक आउट हुई। फिर एक और आदमी का पता चला, वो आदमी की प्रॉब्लम थी इस औरत के साथ, उमा खुराना के साथ कोई मसला था, कोई झगड़ा वगड़ा था। उसने और प्रकाश सिंह ने मिलकर के एक प्लान बनाया, एक फेक स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें थोड़ी बातें इधर से ली गई, थोड़ी बातें इधर से ली गई, और जोड़ करके बनाकर पोस्ट कर दिया, यानी लाइव कर दिया, लोगों ने देखा उसको। अब आप पूछो ना कनेक्ट कैसे करते हैं। इस औरत की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप सोच सकते हो कि एक औरत होकर के भरे बाजार में नंगा कर दिया गया, नंगा, कपड़े फाड़ दिए। मतलब अगर मेरे फाड़ दिए जाए ना रास्ते में कपड़े, तो मैं 3-4 रात मैं नहीं सो पाऊंगा, मैं मर दूं। एक औरत के कपड़े फाड़ दिए गए, और आप ये पूछो मर्द और कनेक्ट कैसे ये कर रहे हैं। मर्द आप पूछो मर्द कनेक्ट। मर्द और ये मर्द और औरत की बात नहीं है। अगर किसी का भी मतलब मॉडेस्टी, किसी का भी जो पर्दा होता है, शर्म होता है, उसको बेआबरू किया जाता है, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। और पता फायदा क्या हुआ, तो जब बहुत उसने डरावना डिफेमेशन का चीज है। केस किया ना, तो उसको 1 साल के बाद वो केस वापस विड्रॉ करना पड़ा। शी गॉट नथिंग। और अगर अभी भी ये जिंदा, मुझे नहीं पता अभी जिंदा है कि मर गई। रिपोर्ट said that वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ था, बट अब एनीवे, अल्लाह वाला भाई, like मैं कुछ कह नहीं सकता ना भाई, मुझे नहीं पता, तुमको नहीं पता भाई। ये तो मतलब एक जैसे बाकी का स्टिंग ऑपरेशन था, एक हवा बनाई गई, no, उसके लिए लोग जाके that मारने was लगे, said in a जो भी था। very reputed newspaper that she withdraw the case. ठीक है, भाई केस आप जब विड्रॉ कर रहे हैं ना, करते हो, बहुत रिप्यूटेड क्या नाम है चैनल के अंदर, ठीक है, खैर बहुत बड़ा कनेक्शन क्या है, एडिटर है, कनेक्शन क्या है? ठीक है। तो वो रेप्यूटेड या रेपुटेशन की कोई बात ही नहीं रह गई है। मेरी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि 2007 में एक औरत को नंगा कर दिया गया था, जहन से निकाल दिया हमने। हम राइट, भूल जाते हैं कि वही जेएनयू के अंदर जब लोग मतलब बहुत मतलब पूरी सारी चीजें मौजूद हैं, आपको सिर्फ गूगल करना है।
सारे प्रूफ्स मौजूद हैं कि कैसे क्या हुआ, हम भूल जाते हैं। उन बच्चों को कैसे मारा गया, हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था। आज हम बात जरूर कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन की, लेकिन हम भूल चुके हैं हमने किया क्या उसके लिए। कुछ भी नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम लोग कुछ कर भी हम लोग कुछ कर भी नहीं भाई सकते अगर यही चीज Exactly गांधी जी सोच demonetization. लेते तो आज भी हम एक मतलब गुलाम होते, गुलाम अंग्रेजों के। यही ठीक चीज है, गांधी जी को let me ask you. Okay, so let me ask you something. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट में आता है, ठीक है, जो the first point the government gave, ठीक है, to curtail shadow economy which is black money, ठीक है, 2018 में आरबीआई ने बोला, उसका आरबीआई का वेबसाइट में, राइट, which is rbi.in or rbi.co.in, right, RBI stated that the government expected 15.3 trillion rupees to be 15.41 trillion rupees to be unaccounted money which will be black money. Out of that 15.3 trillion कैसी बात कर रहे हो? was क्या चीज, ये ट्रिलियन मनी कहाँ क्या से? बोल रहे हैं? ये डेटा कहाँ से मिला? हाँ, that is 15.3 मिलियन इज अ ब्लैक मनी। ये डेटा ये डेटा आपका आरबीआई से ही है। द गवर्नमेंट सस्पेक्टेड भाई जरा प्लीज लिंक देना दैट मुझे। 15 पॉइंट, भाई लिंक मैं देना। अभी लिंक देता हूँ, मैं दे देता, मैं लिंक डाल दूंगा, मैं पहले बोल लूँ फिर मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, I'll lose my chain of thought. So 15.41 trillion rupees was supposed to be black money, ठीक है, out of which 15.3 trillion rupees was returned to the bank, which means that 99.3% of the suspected black money that was there in the economy was returned. So इसका obviously तीन मतलब होता है। Number one, black money जो suspected था is 15.41 trillion rupees. That was never there. वो ब्लैक मनी था ही नहीं, वो कंप्लीटली रॉन्ग डेटा था गवर्नमेंट के पास। एक ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, द ब्लैक मनी व्हिच वाज सस्पेक्टेड, राइट, वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अनअकाउंटेड मनी फ्रॉम स्मॉल बिजनेस, लाइक जो होता है ना, मोदी दुकान जो होता है, स्मॉल ग्रोसरीज, स्मॉल शॉप्स होता है, वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज हम लोगों का अब मोदी सर बोल सकते हैं, मोदी साहब बोल सकते हैं, तो भजिया तलना भी प्रोफेशन है, तो और शायद है, डेफिनेटली है, अनफॉर्चुनेटली, बट वो इकोनॉमी इतना भी बड़ा नहीं है जो 15.41 ट्रिलियन के पास जाए। अब लास्ट क्या हो सकता है, लास्ट ये हो सकता है, रीजन ये हो सकता है व्हाई दैट हैपेंड, व्हाई द मनी केम बैक टू द बैंक, दैट द सस्पेक्टेड ब्लैक मनी दैट वाज प्रेजेंट इन द इकोनॉमी, राइट, these people found ways, illegal or unscrupulous ways, to put that money back into the system, right, maybe हवाला से हो, मे बी कोई और, excuse me, मे बी कुछ और वे में हो, so they put the money back into the system, right? So number one, so the government should be taken before they acted, right? They should be and once again, right, so the government expected 30% of cash, 30% of cash won't come back to the bank. So out of this 15.41 trillion, the government suspected 30% will never make back to the bank, because that is basically where the black money was, right? So the government did not, first they had wrong information, okay? Second is they did not foolproof the plan, they did not bulletproof the plan that how to stop people who are having black money, probably from illegal sources, will find more illegal ways to convert that black money into white money. The government did not have any way for that, right? Now, what we could have done on it? Coming back to you, ठीक है, हम लोगों को क्या करना चाहिए था, आप बताइए। हम लोग as a normal people of India, what could we have done? हम लोग क्या कर सकते थे? मतलब हम क्या कर सकते थे, या हम बीइंग ऑन अ पोस्ट ऑफ अ पीएम अगर मैं ये करता तो क्या क्या पूछना चाहता? No, what you said is that हम लोगों ने कुछ किया नहीं, like demonetization, right? And I said that हम लोग कुछ कर नहीं पाते, the way it was formed. डिमोनेटाइजेशन के बारे में कुछ नहीं किया, ना ना ना, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा हम भूल जाते, जैसे हम इसको भूल गए, उमा खुराना को भूल गए,
जैसे हम जेएनयू में जो बहुत सारे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ जेएनयू, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती रहती हैं जो हम, जैसे मिसाल के तौर पे सुशांत का केस हो गया, जैसे मुद्रा राइट के ऊपर 3,000 करोड़ रुपए की ड्रग मिली थी, हम भूल गए, हम जहन में नहीं रखते। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ कि हम लोग भूल जाते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए, और हम भूल जाते हैं, इसीलिए हमारी आज ये हालत है कि आज हमें लोग अपने पैरों के तलवों के नीचे रख के उसको मसल के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। अगर हम यही चीजें याद रखने लगेंगे तो हमें ये पता होगा कि इस आदमी ने कल क्या किया था। वो कोई भी हो सकता है, वो बीजेपी का हो सकता है, वो कांग्रेस का हो सकता है, वो आपका कोई भी हो सकता है, वो हमारे आप मतलब हम लोग के रिश्तेदारों में हो सकता है। लेकिन जब हम उन चीजों को याद रखेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं, इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। हम लोगों को एक डस्टबिन बना के रख दिया है एज अ होल, एज अ नेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक मतलब मुझको आपका को डस्टबिन बना दिया है या तुमको डस्टबिन बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं। हम सबको, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हमें जैसी कोई नई चीज मिलती है खेलने के लिए, वो उठा करके एक और चीज फेंक देते हैं, इंडिया चाइना, अब हम इंडिया मैं थोड़ा सा फिर उठा के इंडिया पाकिस्तान मैं फेंक थोड़ा दिया, सा हम इंडिया पाकिस्तान पे लड़। मैं अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें क्रिकेट कॉन्ट्राडिक्ट मैच मैं हो आपको रहा है, थोड़ा सा इसमें क्रिकेट मैच हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा एक क्रिकेट। सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्राडिक्ट भी करना चाहूंगा और अग्री भी करूंगा। अग्री इस चीज में करता हूँ दैट आप जो बोले दैट देयर इज समथिंग एल्स एट प्ले, बट मुझे नहीं लगता दैट हम लोगों को डस्टबिन बना दिया गया। मुझे ये लगता है जो it has always been the law of, I think Alina, okay, Alina has got disconnected. So मुझे ये लगता है that there is always this system, ठीक है। अगर आप राजा के टाइम में जाओगे तब एरिस्टोक्रेट्स हुआ करता था। अगर आप एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में जाओगे तो भी सेम फॉर्मूला चलता था, राइट। अब जब वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप यूरोप में देखोगे तो वो उसमें कैसे नहीं, 2 मिनट, इसमें तुमने राजा की बात करी। हम रह रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, ठीक है। हमारे पास जो हमारा पासपोर्ट है वो हमको बताता है कि आप एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री में आप सिटीजन हो। अब आप अमेरिका में जो बाइडन, द फर्स्ट पर्सन, पता है उसका छापा पड़ा है आज, Okay, छापा so पड़ा है। okay, प्रेसिडेंट fine. ऑफ So let me अमेरिका tell क्या, you. दिस इज व्हाट Okay, fine. So इज ऑन कंट्रीज ऑन। so let me tell you something. So this is the point that I'm actually saying. Actually, I'm making. Democracy is nothing but a myth, right? And I'll tell you नो the आई reason डोंट why. बिलीव दैट, ठीक है, नो आई डोंट, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो I'll कांट बी अ मिथ। try to counter that. कैरी ऑन। I'll tell you why it is a myth. I'll tell you why it is. If you see that when there was kingship, there used to be ministers, ठीक है, जिसको हम लोग मंत्री तभी भी मंत्री ही कहा जाता था। हिंदी में अभी भी हम लोग मंत्री कहते हैं, तभी भी मंत्री ही कहा जाता था। who are basically ministers. ऑटोमन एम्पायर में लाइक दे उन लोग पाशा कहते थे। पाशा इज आल्सो अ प्राइम मिनिस्टर। So there was always this system. Then there were the group of people who were close to the king, and then there were the farmers and and then there were warriors, and then there were farmers, right? And then there were slaves, right? अगर आज का सिस्टम देखिएगा, there is a prime minister or the president, ठीक है। Second, there is always SecDef, Secretary of Defense. There is always uh, vice vice prime minister, or I mean जिसका जो कंट्री में जो जैसे होता है, ठीक है। Next is the soldier part, which are the armies, police officers, peacemakers. Third, जो farmers था, we are the one who are the middle class, and then comes the slave, which are the poor poverty in India, which is maximum, right? Now the similarity between that time and this time is that only on the face value कभी कभी वही छापा मार दिया जाता है, but in reality, if you take out data of all the persons who has become prime minister, right from Rajiv Gandhi, you will see they will either belong from a very 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 rich family, or they were powerful people, and they rose to that power
in very conflicting, in a very how to say it, conspiring circumstances. Like for an example, नरेंद्र मोदी को कितना लोग जानता था, आप अमित शाह को कितना लोग जानता था, जानने तब लगे जब गुजरात में राइट हुआ, केस जानने तब लगे जब गुजरात में केस हुआ अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ऊपर फॉर inciting and for pushing this agenda, right? So problem वहां से आने लगे, ठीक है, and मतलब power वहां से आने लगे, and then he has become the prime minister. और मैं ये like I'm not being an anti BJP or anything, right? What I'm trying to say is that throughout history, these people, and I'll not also go into the deep conspiracy wherein Illuminati and that shit, right? I'll not also go into that conspiracy. So what I'll say is that right, even now, right, we have this, right? We have this kind of same system that was there. Well, the only way बीच में जब ये stop हुआ था, when people revolted, when people started questioning the government. आप वो चाहे World War II कैन में देख लीजिए, right? जब जार्स के साथ जो हुआ, या फिर रशिया में देख लीजिए when there was a revolution, आप यूके में देख लीजिए, right? So, and I'm not saying that the right way is to revolt, but the right way I believe is to question. This is where I agree with you that the youth of today, right, or the people who are listening, should be more aware of what is. प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है, शायद पढ़ना छोड़ दिया. True, बिल्कुल इससे मैं बिल्कुल agree जॉर्ज करता हूँ. हिस्ट्री तो डिफॉर्म्ड इन इटसेल्फ है ना. जॉर्ज वॉशिंगटन जब इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन करके बाहर आए, तो इनसे एक औरत ने पूछा कि आपने हमारे लिए क्या चुना, क्या चूज किया आपने हमारे लिए. तो उन्होंने कहा कि वी हैव सेलेक्टेड अ डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर यू इफ यू कैन कीप इट. ये जो आखिरी का एक सेंटेंस है ना, इफ यू कैन कीप इट, यस भाई, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब तुम कह रहे थे कि राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, हु वाज ही? He was murdered. वो जो भी थे, प्राइम मिनिस्टर तो बने ना, assassinated. प्राइम मिनिस्टर तो बने ना. कितना देर? For how long? How long? मैं कह रहा हूं, Why was Kennedy assassinated? पावर तो है ना, आप यूज नहीं कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है. You have that power. No. You have the power to the vote. problem is, You have the power to vote, understand, but you are not using it. आपका understand. Both Shastri ji and Kennedy wanted to use their power for the things which is better for us, and they both were like, you may say that, And well, still, Kennedy was we didn't learn anything from this. And still we didn't learn anything from this, ना? यही तो प्रॉब्लम है. आना क्या है? आना क्या कर रही हो? आना हमारा आवाज कट रहा है. हेलो, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है. हाँ, अब आ रहा है. तो मैं बोल रही हूँ, अलीना कहाँ है, जिसको जानना था, कहाँ गई? आ रही है. वो अच्छा. आ रही है. तो आप लोगों को मैं पूछना चाहूंगी तब तक कि आप अगर मोदी की जगह होते तो आपने क्या किया होता? What would be your strategy? चलो पहले एस जवाब दे दे, फिर मैं दे दूंगा. चलिए. सबसे पहले so this may go on for a bit. So number one, black money. Let me give you some stats, right? So the government said that black money had this and that. Now, when previously, right, this happened, because I told you, right, that in 1946 and 78 it happened. So in 2012, the CBDT, which is Central Board of Direct Taxes, stated that according to data, right, from probes, black money holders kept only 6%
6% or less of their wealth in cash. Others are mainly in forms of overseas accounts and properties and shadow companies, right? So they said that targeting this cash won't be a success, right? तो वही अब चोर को पकड़ने के लिए आप गांव तो नहीं जलाओगे. So the first thing to curb black money, the right way, was to look in our tax system, how we can encourage people paying more taxes. Second is, we have to make sure that the corruption, which is one of the main reason, the corruption is curbed, corruption is checked. So मैं demonetization करता ही नहीं for the first point. Second, about, they said that it is for increasing cashless transaction. True. Cashless transactions was like increased, but उसके साथ साथ frauds और scams भी increase हुए, if you have seen. And although there was like there was another YouTuber, he's very famous. He did this thing back 5-6 years back. So he said that he showed a graph that after during 2017 tak, there was a spike in online transaction, and then it fell off. It went back to where it was. The reason is people did not have any option. आप किसी के ऊपर किसी का सर पे बंदूक रख के बोलोगे ये काम करो, तो शायद उस वक्त वो काम करेगा. जिससे बंदूक हटा लोगे वो नहीं करेगा, राइट? आपको कुछ एक इंसान अगर आप चाहते हो वो काम करे तो आपको उसको कन्विंस करना होगा. सो द राइट वे, look at US. They are doing it for I believe half a century. So for cashless transaction, first we have to make the system as SBI आधा से आधा टाइम डाउन रहता है, राइट? एंड इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो पहले तो जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा. सेकंड इज वी हैव टू प्रोवाइड वेज that how can we take the liability from people who goes through frauds and scams. The government says, the RBI says that there will be only, if you are reporting the fraud for 7 days, within 7 days, I believe it was 3 lakhs if I'm not wrong, they will only take up, it is something ridiculous. It is between 5 and 25,000. They will only take care of 5 to 25,000 if you are reporting within 7 days. After which, it will be partial, and even if you are reporting after 45 days, it is completely up to you, right? So when you are making this cashless economy, जो अभी government कर रहे हैं, there are advertisements how to encourage you not to share OTPs, right? And other things. जो अभी government कर रहे हैं, ये पहले करना चाहिए था. तो demonetization उसका कोई, अब डिमोनेटाइजेशन मतलब आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, जो तुमको ना खाना खाना सीखना होगा विथ फोक एंड स्पून, ठीक है? तुमको चम्मच से खाना खाना होगा. अगर तुम नहीं खाओगे तो तुमको खाने नहीं देंगे. ये एक गवर्नमेंट बोल नहीं सकता. गवर्नमेंट का काम है वो समझाएं जो कैसे चम्मच से खाना खाना इज बेटर देन हाथ से खाना खाना, व्हिच आई डोंट बिलीव. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है? तो ये तो उसके लिए भी मैं डिमोनेटाइजेशन नहीं करता. सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो है फॉर काउंटर टेररिस्ट एक्ट, ठीक है? सो लेट मी गिव यू सम डेटा, राइट? सो डिमोनेटाइजेशन हुआ कब? डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर. On 19 November, there was a terrorist attack in Assam. 22nd November, Kashmir. 3 soldiers died. 29 November, Nagota. 17 soldiers died, right? 2019, Pulwama attack. And like the NCR, which is National Crime Records Report, also said that like about 2,272 of 2,000 fake notes, right, which is 45 lakhs and 44,000 were seized just in Gujarat by the end of November 2016. So if you are saying that these fake notes are encouraging terrorism, it is still there. जिस दिन demonetization हुआ, उसका कुछ दिन बाद ही there were strings, there were raids in houses of political figures. Cash money were seized.
for new nodes, right? And so on. So terrorism रोकने के लिए सबसे important जो है वो है to build a very very strong army, which we have, but we don't give them enough power, we don't give them enough freedom to act on secrecy and to perform their action. हम लोग को हर चीज चाहिए जो अच्छा तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो, क्या कर रहे हो. And then if you look what happened after Pulwama, these political parties, and once again I don't mean BJP or I don't mean Congress, I don't mean any other party, I mean all the parties, they will use the actions of army when it is against board of electoral commissioner, that you cannot use actions done by the army for your election propaganda, right? It was done. So army का जो secrecy है वो था ही नहीं. This is the reason why that terrorist attacks are happening and will be happening till the time that the army is given proper independence. So that, and once again, army में safe food नहीं है. There are multiple videos. The army people are not taken care properly. This has to be seen and this has to be checked, and that is how we can stop terrorism, not with demonetization. So in short, मैं तो demonetization करता ही नहीं, because it is just a fool's errand. Do you know something? Let me give you something very 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 interesting, right? So the New York Times said, termed this demonetization as atrociously planned, and it did not combat black economy. The Guardian said Modi has brought havoc to India. The Harvard Business Review said it is a case study, and they were teaching actually, it is a case study in poor policy and even poorer execution. तो वो तो मैं करता ही नहीं. If you ask me, मैं कैसे करता demonetization, मैं तो करता ही नहीं, because of these reasons. Let's go to आपका. Let's see what he has, like उसका क्या point, उनका क्या point है. आपका आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? तो ना इसमें सबसे, मतलब मुझे जो चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती है वो ये करती है कि जो मोदी हैं वो मामूली आदमी नहीं है. ही इज माय प्राइम मिनिस्टर. मतलब हो सकता है मेरे उनके ख्यालात ना मिलते हो, ठीक है, कोई बात नहीं. हो सकता है मेरी एक दूसरे की सोच ना मिलती हो, हम लोग, उनकी अलग सोच हो, मेरी अलग हो. तो जैसे ही हम ये सोचना शुरू कर देंगे या हम ये मानना शुरू कर देंगे कि हमारी गवर्नमेंट हमारा ही बुरा चाह रही है, मतलब तुम समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी पूरे इंडिया के अंदर. एक्चुअली जो वर्ड हैवॉक इस्तेमाल किया था वो तब इस्तेमाल होगा जब एक इंडियन सिटीजन को ये यकीन हो जाएगा कि उसकी गवर्नमेंट उसी की मार रही है. आप समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो एज बीइंग अ इंडियन, एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब मैं ये मानने को नहीं तैयार हूं, भले चाहे मतलब कितनी वीडियोस आ गई, लोगों ने कितने रिव्यूज दिए, अपनी अपनी बातें रखी हैं, मतलब कि एज बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैं कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था. तो अगर उस एक्सपेक्ट से मैं सोचूं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, और ठीक है मैं मतलब ब्लैक मनी के लिए नहीं, मैं नहीं करता डिमोनेटाइजेशन, जैसा एस ने कहा, टेररिज्म के लिए मैं नहीं करता, लेकिन फॉर सम अनसीन सर्कमस्टांसेस अगर मुझे डिमोनेटाइजेशन करना ही होता, जो सिर्फ मुझे पता है कि मजबूरी है, करना ही है, फिर मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो आइडिया है ना डिमोनेटाइजेशन, भाई वो मजबूरी आपको, भाई वो भाई मजबूरी आपको भाई भाई बताना भाई होगा. भाई मैंने नहीं बोला भाई, मैं चुप था, मैं बिल्कुल चुप था, मैं खामोश था. आई लॉस्ट द चेन ऑफ माय थॉट्स. अरे मैं भूल गया. अगर आपको डिमोनेटाइजेशन कुछ अनसीन रीजंस के लिए करना पड़ता तो आप कैसे करते? अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते, अगर आपको कुछ रीजन के लिए करना पड़ता तो आप कैसे? नहीं मैं भूल गया, जहन से उतर गया मेरे. आई जस्ट लॉस्ट इट. मैं आपको याद दिला देता हूँ. आप बोल रहे थे नहीं, वो जो चीज अगर, थी वो जहन से निकल गई, तुम कैसे याद दिलाओगे मुझे? अच्छा.
चलो मुझे याद आएगा, मैं बोल दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में बोल दूंगा, याद आएगा। अच्छा, तुम कैसे करती आहन? जो रीजन जो मैंने पढ़ा था न्यूज में कि मोदी गवर्नमेंट ने ये इसीलिए किया क्योंकि उनको ये हम जो नकली नोट चलते हैं उसका काफी बड़ा एक चैनल है जो खत्म करना था। Having said that, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, लाइक जो भी 8 नवंबर 10 नवंबर की डेट है, उसके 2-3 दिन बाद से ही नकली नोट, वो भी 2000 के, वो मतलब बल्क में पकड़े जाने लगे। तो कई लोगों ने, कई रिसर्चर्स ने तो ये भी कहा था कि डिमोनेटाइजेशन करने का एक रीजन उनका ये था कि वो लोग अपना काला पैसा मार्केट में स्प्रेड करना चाहते थे, क्योंकि जो वो लोग कैसे? डेवलप कर रहे हैं भाई, अब मतलब जैसे 2000 का नोट उन्होंने लगाया, उसकी तो डाई नहीं है ना, फॉर एग्जांपल किसी के पास। जो पुराने नोट चले आ रहे हैं वो तो चले आ रहे हैं, लोगों ने कहीं 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 से कर करके वो जाली नोट बना लिए हैं। लेकिन जो 2000 के जाली नोट हैं, वो अगर 100 जाली नोट मार्केट में आए हैं तो 80 सरकार ने ही इशू करवाए हैं। मतलब कई जगह कई आर्टिकल्स मैंने ऐसे भी पढ़े हैं, मुझे नहीं मालूम कि कितने सच हैं कितने झूठ हैं, लेकिन ये भी एक बात थी जो मार्केट में मैंने काफी पढ़ी थी। एंड यस, आई अग्री, जैसे अभी बात हो रही थी कि नंबर 1 मैं अगर होती इस सिचुएशन पे तो पहली बात तो मैं कोई भी चीज करती। देखिए, हम कह रहे हैं हम ब्लैक मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को ये लोग टारगेट करना चाह रहे थे वो लोग इनकी अप्रोच से बाहर हैं ऑलरेडी। तो एट लास्ट नुकसान किसका होता है? नुकसान हमेशा कोई भी नई Hi पॉलिसी Alina, बनती है। welcome back. हाय अलीना, वेलकम बैक। थैंक यू। तो कोई भी नई पॉलिसी बनती है, कोई भी नई चीजें आती हैं, तो उससे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो आम आदमी होता है, एज वी कॉल मैंगो पीपल। तो आम आदमी का ही यहाँ पे भी नुकसान हुआ, वो चाहे आप डिमोनेटाइजेशन हो जाए या जीएसटी हो जाए, जो आने वाले टॉपिक में हम एक कवर करेंगे, ये वाला टॉपिक भी, रिसेशन हो, जो भी चीजें हो, आप देखिए उसमें आम आदमी मरता है। तो 108 लोग तो मरे, वो आम लोग थे ना। 108 लोग तो मरे उस प्रोसेस में, तो वो आम लोग थे। आई डू एग्री विद यू ना, टोटली। जैसे जो बड़े लोग हैं, जो जो उस मुकाम पे बैठे हैं, जो काला ब्लैक मनी जो रोटेट कर रहे हैं, उन्हें वैसे भी अपने घर से बाहर नहीं जाना करने के लिए। हम बीइंग अ मिडिल क्लास, जैसे इसने अपना एग्जांपल दिया कि वो खुद कभी बैंक नहीं गया, जैसे अपने दोस्त को बोल दिया, कर लिया। तो आप सोचिए, जब हम बीइंग अ मिडिल क्लास हम इतनी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो हमसे ऊपर का तबका है, जाहिर सी बात है वो सब वो कर सकता है, तो उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ, नुकसान जनरल पब्लिक का हुआ। अगर मैं एक्चुअली में मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी कि मेरे आम आदमी उससे ज्यादा सफर करे, बिकॉज आज भी इंडिया की जो टोटल हमारी है ना, एक बात और भी है कि जो रिफॉर्म्स होते हैं उनसे प्रॉब्लम तो होती है ना, नहीं? जैसे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, तो अब जब कार एक रोबोट बनाना शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है कि रोजगार कम हो जाएगा। उस कारखाने में जहाँ एक कार को बनाने में 50,000 लोग लगते थे, हम अब 2,000 लोग भी नहीं लग रहे। वो पूरी रोबोटिक आर्म्स लगे हुए हैं, वो सब बना रहे हैं, कार पूरा तैयार करके बाहर ले आए, वो पेंट भी सारी मशीन कर रही है। तो वहाँ की फिर रोजगार कम हो जाएगा ना। तो जो भी कोई रिफॉर्म होगा वो कुछ ना कुछ उसके एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे, राइट? डिसएडवांटेज होंगे, बिल्कुल राइट, 100% राइट। सो लेट्स से कि अगर मैं डिमोनेटाइजेशन करता, तो मैं, जैसा मैंने कहा कि मैं ये मानने को नहीं तैयार हूं कि एज बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ना हो तो कुछ ऐसा कर दें जिससे हिंदुस्तान को नुकसान हो, लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठने के बाद कोई भी आदमी, वो चाहे कोई भी हो, मतलब वो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसको लगे कि इससे मुल्क को नुकसान होगा। तो मुझे लगता है आइडिया बहुत अच्छा था, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं था। आइडिया बहुत अच्छा था, शायद मैं भी करता अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो, लेकिन 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे नहीं होता जैसा इसमें हुआ, या जो हमने देखा कि रात के 12 बजे मैं आता, रात के 12 बजे अनाउंस भी ऐसे ही करता जैसे मोदी जी ने किया, नो डाउट, क्योंकि मैं सीक्रेसी लीव नहीं, मतलब उसको जाहिर नहीं करता कि मैं 24 घंटे के बाद डिमोनेटाइज करने जा रहा हूं या नोट बंद हो जाएंगे।
तो मैं उसको छुपा के ही रखता, सीक्रेट ही रखता, उसको डिस्क्लोज नहीं करता, उसको डिस्क्लोज उस टाइम पे करता जब सारी चीजें तैयार हो जाती। यानी अगर आइडिया मेरे जहन में आया है तो मैं प्लानिंग करता, पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग। यानी पहले नोट छपते, तैयार हो जाते, उसके बाद फिर वो बैंक्स में आ जाते, फिर वो एटीएम में लग जाते कि लोग जाएं, कार्ड डालें, पैसे निकाल लें। बैंक में जाइए, चेक जमा करिए, पैसे निकाल लीजिए, आपके पास जो नोट है आप दीजिए, वो पैसे निकाल लीजिए। जो भी, मतलब ऐसा नहीं कि उसको अभी बोल के बताया जा सकता है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन सही होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। और उसके बहुत सारे इफेक्ट्स ऐसे भी हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है, अभी और आगे दिखाई भी देंगे, जो मतलब खराब उसमें है, बुरे पर्सपेक्टिव में, और कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं और आने वाले टाइम में पता चलेंगे। क्योंकि मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसके अंदर मतलब जैसे वेनेजुएला में, मतलब क्योंकि अगर मैं डिमोनेटाइजेशन करता तो पहले मैं डिमोनेटाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ता, मैं देखता कि 1946 में या 1940s में भी एक बार डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर 1970s में भी एक बार डिमोनेटाइजेशन हुआ इंडिया के अंदर, लेकिन वो एक्चुअली में डिमोनेटाइजेशन नहीं था। उसके अंदर जो उनके बड़े नोट थे जो कम इस्तेमाल होते थे, वो सीरीज बंद कर दी उन्होंने। उन्होंने पैसा बंद नहीं किया। ये जो अभी हुआ है उसमें 86% के आसपास का जो पैसा कैश हम इस्तेमाल कर रहे थे वो बंद हो गया, ना कि मतलब जो 46 में हुआ, जो 78 में हुआ, वो ऐसा नहीं था जो अभी हुआ, वो बहुत अलग था, डिफरेंट था, वो छोटे एस्पेक्ट में था, ये बहुत बड़े एस्पेक्ट में था। मतलब इससे बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई। वेनेजुएला ने किया, कोई फायदा नहीं हुआ। जिम्बाब्वे ने किया, कोई फायदा नहीं हुआ। और भी एक आध कंट्री ने किया, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर मैं करता, जाहिर सी बात है, तो किसी वजह से करता और मुझे फायदा हो सकता है लोग इसी तरीके से बात कर रहे होते मेरे बारे में भी, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये पता होता मेरी नीयत अच्छी है। हाँ, कुछ गलतियां हो गई, वो हर आदमी से होती हैं। इंदिरा गांधी से भी हुई, राजीव गांधी से भी हुई, जवाहरलाल नेहरू से भी हुई, मोदी से भी हुई। क्या मनमोहन सिंह जी से नहीं हुई? जबकि उन्होंने कितना बड़ा रिफॉर्म लेकर के आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमारा इंडिया कहां पे था 1996 में, जब मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। उस चीज को भी जहन में रखना चाहिए कि हर आदमी अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, गलतियां होती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सपोर्टर हूं मोदी जी का, बिल्कुल भी नहीं हूं, मतलब मैं तो उनकी खामियां निकालता हूं। लेकिन जब बात एक प्लेटफॉर्म पे आकर के बात करने की, और खास करके मैं अपनी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मेरी अपनी गवर्नमेंट, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी मैं मेरे अंदर आ जाएगी। भले चाहे मेरे उनके ख्यालात एक दूसरे से अलग है, लेकिन हाँ, मैं फिर अपने इंडिया की तरफ हो जाऊंगा। क्या मेरी आवाज किसी के पास नहीं पहुंची? आपकी नहीं आवाज नहीं पहुंचा, बिल्कुल मेरा आ एक रही है, सवाल है। बिल्कुल मेरा एकदम मेरा एक लाउड एंड सवाल क्लियर। हम्म, मेरा एक सवाल है आपका से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बार क्या आपको ये क्या क्या आपको ये लगता है, जो अगर इंडियंस हम्म राइट सवाल करे, हम्म क्वेश्चन करे, हम्म तो वो गलत है? एंड टू कंटिन्यू द क्वेश्चन, जब रेनासा हुआ था हम्म तो पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, बेसिकली इसीलिए रेनेसा हुआ था। क्या उसमें आर्ट एंड लिटरेचर का लॉस हुआ था या प्रॉफिट हुआ था? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा कि सवाल नहीं करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैं नहीं, इसकी मैंने वजह ऐसा से कहा कि सवाल नहीं करना चाहिए। अगर सवाल करना चाहिए तो मैं मेरा प्राइम मिनिस्टर से सवाल क्यों नहीं? हाँ, सवाल करिए, आपको आपने सवाल करने को मना नहीं है ना, लेकिन आप किसी की इंटेंशन जो उसके जहन के अंदर है, उसकी सोल के अंदर छुपी हुई है, आप उस पर शक कैसे कर भाई सकते नरेंद्र मोदी, नहीं नहीं भाई, नरेंद्र मोदी मेरे प्राइम मिनिस्टर है, मेरे दोस्त नहीं है जो मैं उसका, या मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है जो मैं उसका दिल देखूंगा। हैं? दिल्ली में ही इज क्या अ है प्राइम भाई, मिनिस्टर दैट, अगर हम ये मान ही लेंगे इस भाई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की इंटेंशन गलत है, तो आप सोचो जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया था हैवॉक, उसका वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट होगा इंडिया के अंदर, और सिविल नहीं हो चुका है तो भाई, छोटी सी बात है। हो चुका है भाई। निफ्टी 6% गिर गया था जिस दिन हुआ था, अभी भी निफ्टी सेंसेक्स रिकवर नहीं कर पाया है। लाइक मैं नहीं तो भाई, इकोनॉमिस्ट देखिए मैं खैर हूँ ये नहीं। नहीं कह रहा हूँ एज भाई कि जो चीजें हुई हैं उसके ड्रॉबैक्स अच्छे या बुरे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि जब ये डिसीजन वो ले रहे थे, या वो वीडियो पर टीवी पे आने की बात कर रहे थे कि अच्छा मैं जा रहा हूँ और मैं एड्रेस टू डोनेशन करने जा रहा हूँ कि अब मैं नोटबंदी, जो 500 और 1000 रुपए के नोट है वो लीगल टेंडर नहीं है, जब ये कहने जा रहे थे, उससे 2 मिनट पहले के उनके जहन में ये था कि मैं इंडिया की मतलब पूरी इकोनॉमी बंद करने जा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका उनकी इंटेंशन ठीक अच्छी है, तो होगी। इससे
कि मैं एक नया रिफॉर्म लेकर के आऊंगा, इससे इंडिया को ये फायदा होगा, जो भी उन्होंने कुछ सोचा होगा उसके बारे में। मैं सिर्फ इस चीज की बात कर रहा हूँ, ना कि इस चीज की बात कि डिमोनेटाइजेशन होने के बाद ये नुकसान हो। हाँ, नुकसान बहुत है डिमोनेटाइजेशन से, नो डाउट, इस चीज को डिनाई नहीं। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर के पास कितना मिनिस्ट्रीज होते हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंट्री। डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, कल्चर मिनिस्टर एंड सो ऑन एंड राइट। एज अ प्राइम मिनिस्टर, अगर एक प्राइम मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लेता है, ठीक है, उस पे बहुत सारा मिनिस्ट्री का जो डेटा है उसको रेट्रोस्पेक्ट में रख के लिया जाता है, ठीक है। नाउ टू यू सेड वन थिंग, जो जब भी कोई रिफॉर्म होता है उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। मैंने ये कहा था कि हर चीज के एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। हाँ, तो जब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म है तो उसके अंदर रोजगार कम हो जाएंगे, क्योंकि रोबोट आ जाएंगे, रोबोट आ जाएंगे काम करने के लिए। राइट। तो मैं ओके, तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरा भाई का जेरोक्स का दुकान है, जेरोक्स कराने का। ही लाइक सम 65 ईयर ओल्ड वाज केम एंड मैं पढ़ रहा था कुछ आर्टिकल, वाज लाइक दिस डिमोनेटाइजेशन इज शिट। ही इज लाइक, बेटा आप कितना, आई वाज लाइक 24-25 देन, आप कितने साल के हो आप? 25-26। मैं 60 साल का हूँ, मैं लाइन में खड़ा हुआ हूँ 2 घंटा 3 घंटा। आप एक यूथ होके नहीं कर सकते? और आपको पता है सियाचिन में हमारे जवान कैसे लड़ रहे हैं? I said, क्या आपको पता है जो जवान सियाचिन में लड़ रहे हैं वो छुट्टी में आके भी एटीएम का लाइन में खड़े हुए हैं? क्या आपको ये पता है? क्या जो सियाचिन में लड़ रहे हैं उनके लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस, जो ठीक है उन लोगों को इतना पैसा पहले ही हम लोग दे देंगे, क्या दिया गया? क्या उनका फैमिली को दिया गया? नहीं, they were treated similarly। तो सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं, उसके साथ डिमोनेटाइजेशन का कोई कनेक्शन नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अगर मुझे लगता जो डिमोनेटाइजेशन से कुछ भी अच्छा हो रहा है तो मैं 2 घंटा क्या, मैं 10 घंटा खड़ा रहता। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। आप मुझे एक पॉइंट गिना दीजिए जिससे डिमोनेटाइजेशन करने के बाद, जिससे इन इंडियन इकोनॉमी एंड इन इंडिया एट लार्ज, राइट, ग्रोथ होगा या फिर एडवांटेज होगा। आप एक पॉइंट गिना दीजिए। उन्होंने एक पॉइंट गिना नहीं पाए। एंड एट लास्ट ही सेड, अब प्राइम मिनिस्टर है तो करना तो बाबू सबको पड़ेगा। I said, हाँ बात ही है। अच्छा, मैं तुम मुझसे कह रहे हो you are absolutely right। मैं समझा तुम मुझसे कह रहे हो कि एक पॉइंट गिना दीजिए, तो मेरा नहीं मैं आपसे हाँ, कि मतलब इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। आइडिया बहुत अच्छा था, मतलब वो जो आइडिया था वो नो डाउट बहुत अच्छा था। मतलब आप सोचो, कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या 6 नवंबर को कोई सोच सकता था कि कल से ये नोट जो मेरे घर में गड्डी की तरीके से पड़े, कल ये साली रद्दी हो जाएंगी? तो नो डाउट आइडिया बहुत अच्छा था। मैं यही कह रहा हूँ कि आइडिया बहुत अच्छा था, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं था। भाई वही तो गवर्नमेंट का काम है। चोर को पकड़ना तो बहुत अच्छा काम है, सबको पता है चोर को पकड़ना चाहिए चोरी रोकने के लिए। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को एक गांव नहीं जलाना, मतलब नहीं, या कोई भी गवर्नमेंट को, ठीक है। वंस अगेन, आई एम नॉट बीइंग एंटी मोदी, आई एम बीइंग एंटी गवर्नमेंट, राइट, ठीक है। नाउ कोई भी गवर्नमेंट को गांव नहीं जला देना चाहिए जस्ट बिकॉज एक चोर को पकड़ना सही काम है। चोर को पकड़ने का इंटेंशन बहुत सही। आप समझ रहे आपका मैं जो बोलने में? मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन सही होता तो इससे बहुत सारे फायदे हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मनी, अब अगर सही से बिल्कुल अकाउंटेड मनी वापस बैंक में जाता, जो कि नहीं किया, तो जो चीज तुम कह रहे थे उस वक्त, एक्चुअली उस वक्त मैं जो तुमसे कह रहा था ना कि कोई डेटा दो, वो जो तुम बात कर रहे थे 15.341 की, 15.41 लाख करोड़ रुपीस जो थे वो कैश फ्लो थे, वो कैश में थे, वो कैश में थे। 15.5 लाख करोड़ रुपए कैश में थे। उसमें से 30% जो तुमने बाद में बात करी थी कि 30%, हाँ वो ब्लैक मनी था। तो अप्रोक्सीमेटली करीब 4.5-5 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट होता है ये। तो 4.5-5 लाख करोड़ अगर वापस हमको मिल जाता एज अ ब्लैक मनी, तो हम, मतलब जाहिर सी बात है वो फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर काम आता। लेकिन वो मिला नहीं। वो मिलता कब? जब वो सही से इम्प्लीमेंटेशन होता उसके ऊपर,
जब गवर्नमेंट उसको सही तो से इम्प्लीमेंट करती। लेकिन इस उस इम्प्लीमेंटेशन सही ना होने को हम गवर्नमेंट के नियत पे उंगली नहीं उठा सकते हैं कि ये आदमी ने गलत सोच करके, उसके जहन में नहीं होगा कि वो ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा। उसने अच्छा ही नहीं, तो सोचा उसके लिए होगा, ये क्यों खराब हो गया? डिमोनेटाइजेशन देखिए, अगर 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 आप अगर आप चलना सीख रहे हैं ना, एक्सक्यूज मी, सबसे पहले आप दौड़ना नहीं सीखिएगा, ठीक है, आपको चलना सीखना होगा। अगर हम लोगों को ब्लैक मनी वापस लाना ही है, तो जो पैसा मिनिस्टर्स का, कांग्रेस मिनिस्टर्स का, राइट, विद बीजेपी हैज फाउंड आउट, तो कांग्रेस मिनिस्टर्स का 5,000 करोड़ रुपया देश, अच्छा राइट, बहुत अच्छा, अपने अब मुझे याद आ गया क्या बोला था मोदी साहब, जो गवर्नमेंट का 5,000 करोड़ रुपया जो बाहर पड़ा हुआ है, वो 5,000 इंडिया में करोड़ हम नहीं लोग भाई, वापस लाएंगे। भाई बहुत, 5,000 कितने था? करोड़ नहीं जाता है, वो लाखों में है। ठीक है, अब मैं फिर भी मैं मान लेता हूँ 5,000 करोड़, ठीक है, मैं मान लेता हूँ हाइपोथेटिकली, वो पैसा हम लोग वापस लाएंगे, सबके अकाउंट में 5,000 या 15,000 जो भी पैसा है वापस करेंगे, ठीक है, हम लोग को पैसा 15 वापस लाख रुपए हर अकाउंट में। 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में, 15 लाख क्या, मुझे 15 रुपया नहीं चाहिए, आप वो पैसा तो इंडिया में वापस लाइए। आप ब्लैक मनी करने के लिए डीमोनेटाइजेशन कर रहे हो, लेकिन आप वो पैसा वापस नहीं कर रहे हो, ला नहीं पा रहे हो इंडिया में, जो आपने फाइंड आउट किया है, जो कांग्रेस का ब्लैक मनी है जो बाहर पड़ा हुआ है। एंड आई अग्री, बेशक होगा, बेशक होगा, अब वो पैसा तो पहले वापस आओ, पहले चलना तो सीख जाओ, उसके बाद दौड़ेगी, खैर उन्होंने दौड़ोगे ये आप। भी कहा था कि कांग्रेस का ब्लैक मनी है, उन्होंने ये कहा था जो नेताओं ने और जो लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठा किया है, तो थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, नहीं नहीं, ऐसी उन्होंने, बात नहीं है मैं कि मैं लोग मैं कांग्रेस के पास ब्लैक मैं मनी है। आपको वीडियो दे दूंगा भाई, उन्होंने, एंड दैट टू, ये मैं आपको वीडियो दे दूंगा, कांग्रेस बोला था बीजेपी गवर्नमेंट में, और बाद में जब उनका नाम भूल जा रहा हूँ, शी इज अ वेरी वेरी फेमस रिपोर्टर, शी इज अ लेडी रिपोर्टर बरखादत, विद इंडिया टीवी। बरखादत, बरखादत। नहीं 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 नहीं, सो नॉट विद इंडिया टीवी, विद, अरे जहाँ पे अन्ना बात है, ठीक है, बंगाली लेडी है, ठीक है, व्हेन शी हैड एन इंटरव्यू विद नरेंद्र, सॉरी, विद विद अमित शाह, तो शी आस्क्ड अमित शाह दैट, ये जो था, अमित शाह सेड, अरे वो तो जुमला था, वो तो आपको समझना पड़ेगा, वो तो जुमला था, राइट। तो ठीक है, जुमला, जुमला इज बेसिकली लाइक, यू नो, व्हेन यू promote your political, you have your political agendas, right, to promote your political party, that is fine and that is accepted, that is legal in India, you can do that, right। तो वो जुमला था, इसके मतलब है आप वो ब्लैक मनी को वापस लाने का कोई इंटेंशन ही नहीं किए थे, लेकिन आप ब्लैक मनी वापस लाने के लिए जो इंटेंशन है, उसके लिए आप क्या किए, आप डिमोनेटाइजेशन कर दी, राइट। एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर, हाउ इज इट जस्टिफाइड? एंड आई एम नॉट, once again I'm not saying नरेंद्र मोदी, as a prime minister and his office, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है ना, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज ऑफिस, हाउ वुड यू डू इट जब आप ब्लैक मनी जो पहले पड़ा हुआ वही नहीं ला? लेकिन मैं आपसे अग्री करता हूं दैट यस, if it was done, if it was executed, and this is why I think this is where I am completely aligned with you. आप जब वो लेडी का ये एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है, तो जिनका फोटो लगा हुआ है, जो हम लोग भूल जाते हैं, we shouldn't forget, we keep on questioning, we keep on questioning government, and the right way is to talk about it, get educated. अब होता क्या है If भाई, you are thinking not, मैं तो बेला हूँ, मैं तो कुछ काम वाम करता नहीं भाई, मैं बेला हूँ, अलीना भी बेली है, अब बची आहना और तुम, तो भाई जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे होते हैं काम की, इधर की उधर की, भाई कितनी बार हम लोग इंडिया की बात कर रहे होते हैं, कितनी बार हम पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं एज अ नेशन। हम लोग करते हैं भाई, मैं और आप तो करता हूँ एज अ नेशन, एज अ होल की, मतलब उसकी तरक्की जैसे कभी हमने सोचा है कि मतलब ये माँ की यहाँ की इंडिया तरक्की कैसे करेगा? नहीं, हमने नहीं करा। हमने एलिगेशन लगाने के लिए, हमने किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए कि चूतिया ने ऐसा कर दिया, वो साला चूतिया, उसको आता ही नहीं, उसने साले ने ये कर दिया। हम सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, मैं भी यही करता भाई, मैं आपको, हूँ, लेकिन मैं आप नहीं नहीं, मैं लेकिन जब ये आपको इतना अच्छा मैं आपको डिस्कशन प्रूव हो कर रहा है ना, दूंगा। तो उसके अंदर थोड़े अपने खुद के अंदर भी चेंजेस आने बहुत जरूरी है। हाँ, मैं आपको, बेशक आना जब तक चाहिए, कि हम खुद में बेशक चेंजेस आना नहीं चाहिए। लाएंगे, तब तक के हम सोसाइटी चेंज नहीं कर सकते। जब तक कि सोसाइटी चेंज नहीं होगी, तब तक के हमारा शहर चेंज नहीं होगा। जब तक कि शहर चेंज नहीं होगा, तब तक के स्टेट चेंज नहीं होगा। जब तक स्टेट चेंज, जब तक इंडिया चेंज नहीं होगा।
तो सबसे पहले हमें खुद में चेंज लाना है, और कम से कम इतना हाँ तो तो कर ही इसी सकते हैं कि हम एलिगेशन लगाने की जगह प्रॉब्लम की बात करने की बजाय हम सॉल्यूशन की बात करना शुरू करें। किसका सॉल्यूशन क्या है, अब क्या कर सकते हैं। चलिए, यही तो सवाल तो मैं आपसे डिमोनेटाइजेशन हो पूछा ही था, गया ना। डिमोनेटाइजेशन का सोल्यूशन क्या है? नहीं, आपके ये तो हिसाब हो से चुका, डिमोनेटाइजेशन का सोल्यूशन ये क्या तो हो चुका। लेकिन अब जैसे इकोनॉमी गिर रही है, अब इसका क्या सॉल्यूशन है भाई? कौन सा मोदी जी हम लोग को सुन रहे होंगे, मान लेंगे कि ऐसा, लेकिन एटलीस्ट एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारा राइट है, और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। जब तक के इंडिया के नाम के आगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लगा हुआ है, तब तक के ये राइट मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिस दिन ये हटा देंगे उस दिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम बात क्या कर रहे होते हैं भाई? हम ज्यादातर बात कर रहे होते हैं मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, धर्मांतरण, फलाना, लव जिहाद। पागल हो गए हम लोग। हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा एक्चुअली। हम लोग मतलब वही कर रहे हैं जैसे हम लोगों से करवाया जा रहा है। हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है भाई कि जब मैं छोटा था, जब मेरे पापा अल्लाह जन्नत बख्शे जिंदा थे, तो हमारे मोहल्ले में करीब 7 या 8 हिंदू फैमिलीज हुआ करती थी, और भाई दिवाली होती थी। मैं क्या बताऊं भाई, क्या दिवाली होती थी। अब तो खैर पता ही नहीं चलता कब दिवाली आई कब चली गई। होली होती थी, पर भाई मैं क्या बताऊं, क्या क्या पापड़ आते थे भाई, घर में घुस घुस के खा के आता था। मुझे नहीं लगता कि अब आने वाली जनरेशन को ये चीज देखने को ही मिलेगी। शायद इसीलिए हम और आप ये महसूस भी कर शायद पाएंगे कि शायद इसीलिए हम और आप ये चैनल बना के ये कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग का जो थॉट प्रोसेस है एक लड़का था भाई हमारे मोहल्ले में, मेरे घर के बगल में रहता था, पड़ोसी था, उसका नाम था सोनू। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, हिंदू था वो, हम लोग क्रिकेट खेलते थे भाई। ईद होती थी भाई, वो मतलब घर में आता था, बाकायदा ईद मिली, उसके फिर सबसे पहले किचन में घुसा, उसने अपनी कटोरी के अंदर सिवाई निकाली और खाली। मैंने नहीं, अम्मी देंगे कुछ नहीं, अम्मी हमारी बड़े बहुत अच्छे बनाती थी, तो बड़े लिए दही डाला, नमक डाला, मिर्चा डाला, खा गई। और यही एग्जैक्टली हाल मेरा उसके घर में था भाई। लेकिन क्या आज की तारीख में जनरेशन जो जवान हो रही है, क्या ये कभी करेगी? मुझे डाउट है भाई, और आई ये हमारी थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी जनरेशन ने कर ली है, वो नेक्स्ट जनरेशन तो नहीं कर सकती है। नहीं ये गलत बात है ना। इट इज नॉट हम लोग का जनरेशन में प्रॉब्लम है, जो हम लोग अपना बच्चे को वो हिसाब से बड़ा एग्जैक्टली, नहीं कर पा रहे। दैट्स द पॉइंट। हम लोग का जनरेशन थैंक यू वेरी मच। हम लोग का जनरेशन ऐसा था क्योंकि हम लोग का हमारे माँ माँ बाप बाप ऐसे हम थे, लोगों को सही। हमारे माँ बाप राइट ऐसे थे, राइट और हम वैसे राइट नहीं। मैं एग्जैक्टली और वन वन ऑफ द मेन रीजन इज दैट जो अभी हम लोग बच्चे लोग मोबाइल में है, हम लोग मोबाइल में नहीं है। हम लोगों का माँ बाप अभी मोबाइल में नहीं है, हम लोग खुद मोबाइल में नहीं है। कौन से मोबाइल में रखा हुआ है? मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग उन लोगों के ऊपर आजकल के मिलेनियल तो फोन में लगे हुए। क्या हम लोग फोन में लगे हुए नहीं है? क्या हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं कर रहे? हम लोग भी तो कर रहे हैं ना। लाइक टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, राइट, देयर वाज अ टाइम, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के साथ, लाइक हम लोग का फैमिली उतना जाके मिक्सअप नहीं कर, ठीक है, एंड आई एम रेज्ड बाय माय अंकल, रेज्ड एट माय अंकल्स। मेरे मामू ने, जब मैं बहुत छोटा था, ठीक है, तो मुझे ये सिखाया था, जब तुम किसी से दोस्ती करोगे, ठीक है, उसका हैसियत कभी मत देखोगे, वो क्या है वो देखोगे, क्योंकि जब तुम्हारा बहुत खराब टाइम आएगा तो यही दोस्त तुम्हारे साथ देगा। और वो बात कितना सच है, वो मेरे से अच्छा कोई नहीं। तो मेरी जो छोटी बहन है, उनकी जो बेटी है, मैं उनको ये सिखाया हूँ, ठीक है, मेरे जो बच्चे होंगे मैं उसको भी यही सिखाऊंगा, राइट। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, हम लोग अपना डेली का काम में, लोग सुबह उठते हैं, मोबाइल फेसबुक कर लेते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस धीरे धीरे जल्दी 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 ऑफिस चले गए, अरे यार कब घर जाए, हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर, हो गया, घर आ गए, घर आके थोड़ा फेसबुक कर लिया, फिर से थोड़ा सा वही अन्नप का फाइट्स देख लिया, ठीक है, फिर डिनर कर लिया, फिर घर गया, रूम गया, थोड़ा सा सेक्स कर लिया, सो गया, फिर सुबह उठा एंड द सेम थिंग। हम लोग का जो थिंकिंग कैपेसिटी है, ठीक है, जो हम लोग का सोच है, वो कहीं ना कहीं वो उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का साजिश है, ठीक है, दैट वी विल नॉट बी हैविंग टाइम टू कंटेम्पलेट। नहीं नहीं, हम खुद नहीं कर रहे हैं भाई, हम कितने सोशल हैं, कितने सोशल रह गए। हमारी पूरी दुनिया हमारे घर के अंदर आ गई है, या तो साला स्मार्ट टीवी है या स्मार्टफोन है, और हम खुद को स्मार्ट समझ रहे हैं, जबकि हम नहीं है भाई। क्या पहले नहीं था? क्या क्या पहले बुक्स नहीं थे? क्या क्या तुम्हें पहले याद है कि पहले न्यूज़पेपर्स तुम नहीं लोग थे? क्रिकेट खेलने ग्राउंड में जाते थे, या फुटबॉल खेलने, या हॉकी खेलने? याद है?
तुम्हें याद है कि उससे तुम्हारे अभी दोस्त हुआ अभी हम करते लोग थे जो जिनसे तुम बैठ के बातें करा करते, तुम्हारे घर में तुम्हारे फादर होते थे, उनके दोस्त आया करते थे, 3-3 4-4 घंटे वो ब्रो बैठा अभी करते भी थे। मेरे और आज की ब्रो तारीख मेरे में हम क्या अभी कर भी रहे हैं, दोस्त हैं। आज की तारीख में भी हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्कॉर्ड पे आते हैं, घर में कोई नहीं होता, माँ की यहाँ खाली पड़ा होता है, बिल्ली को भी हेलो हाय करने क्या में ये दिक्कत दोस्ती होती है नहीं हमें, है? बात कर लेते हैं अलीना। क्या ये दोस्ती नहीं है? हाँ ना, था बात वो कर। बुक्स जिन तुम बुक्स वगैरह की बात कर रहे हो, सॉरी एस, वो इंटरैक्टिव नहीं था। सो एट सम पॉइंट आपको उससे ब्रेक चाहिए, क्योंकि आप कितनी बुक पढ़ोगे, कितनी। इसीलिए तो मैं So कह रहा हूँ there is internet this is conspiracy. interactive. Our phones are interactive. That's why वो जो human connection Right, होता है वो ना भी हो तो fulfill वो रहती है right. कमी, लेकिन फिर भी वो कमी कहते हैं ठीक है, अगर नहीं है तो it's okay. So that's how वही So आप do सही कह रहे हैं. do you agree? So do you agree that we are conditioned in a इसका way एक मैं एग्जांपल that we देता हूँ will भाई अपना, मुझे माशाल्लाह अपने बाप की एक बात याद आ गई, अल्लाह जन्नत बख्शे। मैं छोटा था तो रात में 4 बजे मेरे बाप ने मुझे उठाया, अरे माँ की आंख, मतलब बहुत गुस्सा आया मुझे, क्या बताऊं, लेकिन मेरी फटती बहुत थी अपने बाप से। तो उन्होंने मुझे उठाया, क्या उठो, उठ गए कि चलो नमाज पढ़। भाई जाड़े की रात है, मतलब ये तब जाड़े पड़ते ही नहीं है, उस जमाने में जाड़े की रात है, वजू करना ठंडे पानी से। खैर अल्लाह अल्लाह करके वजू किया, अब पानी जब मुंह पे पड़ा तो आँख खुल गई, समझ में आ गया। खैर अब उठे, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मैंने कहा चलो जल्दी से भाग के बस दुबक के सो जाए। मेरे बाप ने दरवाजे पे रोक लिया मस्जिद के, कहले ना इधर आओ। नमाज मेरे पढ़ो। ना नमाज पढ़ ली हम लोगों ने, बाहर निकल लेते, नमाज पढ़ने के बाद मैं सोचा अच्छा, भाग के घर आ जाऊं, तो मेरे बाप ने अच्छा। मुझे दरवाजे पे रोक लिया, कहीं चलो। अब मेरे बाप मुझे पैदल वॉक पे लेके गए, मॉर्निंग वॉक पे। अब मैं कुछ कह तो सकता, मेरी फटती बहुत थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूँ, बुरा भी नहीं कहता, मेरा बाप है। और वो आपका अच्छा ही कर रहे थे। ना अब भाई आगे सुनो, अब वो मुझे लेके गए रोड के ऊपर, तो हमारे घर के बाहर मतलब अमीनाबाद की रोड आती है, उसी के आगे जैसे मतलब एक बिल्डिंग है, उसके नीचे थोड़ा सा बरांडा बना हुआ है, उसके ऊपर ना कुछ लोग लेटे हुए थे। मेरे बाप वहीं खड़े हो गए, कहने ये दिखाने आया हूँ, इनके पास छत नहीं है, इनके पास घर नहीं है, ये बेचारे यहीं पे थे। राइट, राइट। अब उसका असर क्या हुआ एस भाई, कि आज भी जब मैं गुजरता हूं ना, और जब वो चीज दिखती है तो बाप याद आता है, अल्लाह जन्नत बख्शे, और उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ समझ में आती है। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहा हूँ भाई। अब उसके अंदर मैं क्या करता लेकिन हूँ क्या नहीं करता क्वेश्चन हूँ है सेकेंडरी बात है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन 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 आपका हाथ क्वेश्चन है, 1 मिनट ऑटोमेटिकली आपका, आपके 1 पर्स मिनट। में चला जाता है। हाँ, एक मिनट आपका, 1 मिनट। इसका इसका अब इसका ये मैटर नहीं करता है जो आज आपके पास फेसबुक है या डिस्कॉर्ड है या क्या है। ये मैटर करता है जब आप एक बंदा या बंदी को देखते हो जिसका सर के ऊपर छत नहीं है। आप तभी भी अपना फोन में लगे हुए रहे हो, या फिर आपका पापा के आंख में जो दर्द था वो आपको याद आता है, और वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप फिर भी फोन में लगे हुए हो, उस यू वक्त कैन तुमने नॉट एक बात ब्लेम द कही थी ना, फोन। उस वक्त तुमने एक बात कही थी ना कि हमारे घर वाले यानी हमारे माँ बाप ने ऐसा किया, तो एक्चुअली मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश यानी हमको ऐसा इंडियन बनाया, इन शॉर्ट, जो मैं तुम्हें एग्जांपल दिया बेशक। कि और हम लोग वो फेल कर रहे हैं कहीं ना रात के कहीं। 4 बजे ले जाके गरीब की गुर्बत दिखा के हमको एहसास करा रहे हैं कि देखो बेचारे परेशान हैं, इनकी तकलीफ को समझो। बच्चा मुश्किल से कितना 7-8 साल का, क्या हम ऐसा करेंगे? क्या हम अपने बच्चों के साथ ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि बच्चों के अंदर वो एहसास ना, कि यानी भूख का एहसास है ही नहीं, तकलीफ का एहसास है ही नहीं। जहां समझ में आ रहा है साले मारे दे रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, नंगा करके एक मार रहे हैं। एक बहुत सिंपल सा चीज है, वो अंग्रेजी सिर्फ में इसीलिए कहावत है कि वो समटाइम्स। एहसास मर चुका है। हम हाँ, हम वही बता होमो रहा हूँ मैं। सेपियन रह गए हैं भाई, हम इंसान नहीं रह गए। हमें वही बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ मैं कि अंग्रेजी में एक सेइंग है, समटाइम्स यू हैव टू क्विल टू बी। माँ मुझे जो मारती थी ना, और मेरे मामू को मुझे मारने का ज़रूरत नहीं था। वो मतलब एक बार अगर मुझे मेरा नाम ले लेते थे ना, तो मैं उनसे इतना प्यार करता था दैट मुझे इमोशनली इफ़ेक्ट करता था वो। मामू मेरे मेरे को डाँट देगा, एंड आई वाज़ वेरी इमोशनल, सो आई वुड नेवर डू इट, राइट? तो प्रॉब्लम ये है, आज हम लोग अपना बच्चे के साथ इतना ज़्यादा स्वीट है ना, नहीं, नहीं मारो मत, ओह माय गॉड डोंट हिट देम, इट्स अनसिविलाइज्ड, डोंट हिट देम, डोंट स्कोल्ड देम। उनको अच्छे से समझाओ, राइट? पॉसेसिव असर्टमेंट इज़ अ वे,
बट सो इज नेगेटिव असर्टमेंट एज वेल। आप जब तक पनिश नहीं करोगे तब तक रिवॉर्ड का कोई मतलब नहीं है। आप बिना पनिशमेंट का खाली रिवॉर्ड करते जाओगे ना, तो वो ग्रीडी हो जाएगा इंसान, और वही हो रहा है आपके आजकल। बच्चे जो हैं भाई Because एजुकेटेड हो सकते हैं, वेल एजुकेटेड हो सकते हैं, क्वालिफाइड हो सकते हैं, वेल टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन वेल सिविलाइज्ड नहीं। एक इसमें एक बात एक्चुअली पता है, वो मैं एक शो देखता हूँ, ठीक है, उसने जो रोगन उसका वो एक बात कहा था, हार्ड टाइम्स मेक हार्ड पीपल मेक सॉफ्ट टाइम्स मेक सॉफ्ट पीपल। शायद वही हुआ है। आप पहले जमाने में देख लीजिए, ठीक है, जाओ, we have to hunt for our food, so it was hard time, and then hard men were there, ठीक है। उसके बाद हार्ड मैन आया, वॉल्वर देख लो, and then they created the UN and they created soft times. Now since we are living in a soft times, we have become so soft that हम लोग का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो क्वेश्चन करने का इंस्टिंक्ट है, अब एंटी गवर्नमेंट होना मतलब ये नहीं है तुम जाके मतलब पार्लियामेंट में जाके जला दो, वो अनएडुकेटेड पीपल करते हैं। द राइट way is to keep on that question is to अनएजुकेटेड नहीं, अनसिविलाइज्ड लोग करते हैं। वही अनसिविलाइज्ड, भाई अनएडुकेटेड, एजुकेशन का अनटूड। सिविलाइज होने से क्या ताल्लुक है? वो तुम्हारे माँ बाप सिखाएंगे ना हमें कैसे जिंदगी जीना है, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि लोगों की रिस्पेक्ट एक्चुअली करनी बात है यही कि है नहीं अभी का, करनी है, अभी किसी को सर कहना है एक्चुअली कि अभी नहीं कहना है, प्रॉब्लम यही है। इज्जत देनी है कि नहीं देनी है। ये तो जैसा भी मैं हूँ आज रियल लाइफ में, वो सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से, राइट? क्योंकि मैंने उनको एक्चुअली हम देखा लोग का अपनी जिंदगी में। एजुकेशन का डेफिनेशन ही बदल गया है। हाँ, प्रॉब्लम वही, एजुकेशन का डेफिनेशन ही बदल गया है, ठीक है। हम लोग को ऑलवेज हम लोग को जैसे व्हाट इज द राइट क्वेश्चन, टू थिंक अबाउट इट, टू कंटेम्पलेट। अरे 1 घंटा फेसबुक मत करो यार, बैठ के सोचो क्या कर रहे हैं हम लोग। ट्राई इट फॉर वंस, everybody listening, try it for once, half an hour, don't do any shit, just contemplate about any fucking thing you want, just contemplate, सोचो उसके बारे में, अच्छा पहले ना see बड़ा how मजा आता good था। you feel। तुम्हें याद होगा कि मतलब अभी तो खैर मोबाइल ये मोबाइल दोनों आ गया लड़की तो थोड़ी पूरा, ये चीजें दोनों मतलब हम लोग लड़की का सो रहन गई सहन है। ही चेंज हो गया है। अब मुझे नहीं पता ये लड़कियां क्या सोचेंगी इस बारे में, लेकिन हम मर्दों का एक राइट होता था जब हम टॉयलेट जाते थे, मतलब फारिग होने के लिए, तो हम सोचते थे मतलब आधा घंटा, उसका फिर अम्मी आवाज देती थी, कमीना कहाँ गया, कुत्ता कहाँ गया, कहाँ टॉयलेट में, फिर बाप आ जाते थे, वो आवाज, वो जो अभी आधा तो पौन घंटा हम होता लोग था तो ना, फोन लेके जाते हैं हाँ ना। वो सोचते थे हम लोग कि माँ की आंख ऐसे करना है, ये राइट करना है, वो करना। अब वो राइट, चीज गायब हो गई है। क्यों? क्योंकि हम मोबाइल भी साथ लेके जाते हैं, हम वहां पे भी सारा चेस खेल रहे होते हैं, एग्जैक्टली। वहां पे भी साला हम लूडो खेल रहे होते हैं। यानी तो पहले हमारा जो जो मर्द नहीं वो थोड़ा हम बहुत बाथरूम में सोचते थे, अब वो भी गया। हाँ चलो वो ये भी गया। रिकॉर्ड, ये इस रिकॉर्डिंग चल रही है ना सही से? हाँ शुक्र बिल्कुल शुक्र, थैंक यू चल रहा है। कंटिन्यू नहीं कंटिन्यू। नहीं बड़े अच्छे अच्छे नहीं राज चलने वाले हैं हम नहीं, लोग द को। प्रॉब्लम, ये मर्द के मुंह एंड से ही देन सुन अगेन लिया आज हमने, वाह। हाँ ना नहीं, प्लीज। इसमें बुरा क्या है यार? क्या तुम लड़कियां पहले पहले जमाने में, अभी तो मिलेनियल्स लोगों के पास टाइम नहीं है, अभी तो हेलो बाबू खाना खाए हो बाबू करने से टाइम नहीं है। लेकिन इनफैक्ट टू द जनरेशन ऑफ लाइक इवन माय सिस्टर्स, लाइक आई न्यू दैट व्हेन दे यूज्ड टू स्लीप before they actually, because I have a, like in my father's house I have a big group of cousins, right? When I used to sleep with any of my sisters, like सोच के ना, अच्छा भाई 2 मिनट, भाई सो 2 मिनट, के भाई यही सोच रहे रोक लो, भाई 2 मिनट रोक लो, मैं सुसु करके आ रहा हूँ भाई, 2 मिनट रोक लो, जाड़ा हो रहा है। हाँ, ये इसी बात का इंतजार था लीना को, आप कब बोलेंगे और कब वो आपको डांट सुना दे। आप डांट डांट दीजिए पहले लीना। No, I can just say ew. या सो पहले तो मैं देखता था, लाइक यू नो शी वाज स्लीपिंग एंड शी वाज थिंकिंग, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तो अभी बाद में मुझे पता चला, जो वो एक लड़का है जिसको पसंद करता, वो उसको प्रपोज किया, तो वो सोच रही थी तब जो क्या क्या रिप्लाई हो सकता है। तो ये लड़के लोगों के लिए भी है, ऐसा नहीं हम लोग लड़के लोग खाली वॉशरूम में जाके सोचते थे, लड़की लोग भी सोचती थी, ठीक है। एटलीस्ट 15 10 15 20 years back, बट अभी तो फेसबुक आ गया है, Wait, I अभी did तो not say मैसेंजर कि आ मर्द गया तो है, व्हाट्सएप बाथरूम में कॉल आ सोचते गया है। थे और लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। We think all the time. Actually, we sometimes overthink. कहाँ से कहाँ बात को ट्विस्ट करते हो तुम भाई? आ हाँ ना, बोलो प्लीज। लड़का लड़की का नहीं, लड़का लड़की का नहीं, वी गाइस आर आल्सो इमोशनल, वी गाइस आल्सो गेट हर्ट। एंड इफ यू टेक बैक हिस्ट्री, देवदास, क्या चीज? हाँ ना, आवाज मफल्ड है, ऊंचा बोलो।
मैं बोल रही हूँ आई ऑल्सो कम इन अ बिट। ठीक है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है लड़का, एंड इफ यू टेक हिस्ट्री, ठीक है, अच्छा, मैं करने मोस्ट गया ऑफ था, द इसका मतलब टाइम्स ये नहीं था कि मैं सुन नहीं रहा था, सुन रहा था, मतलब बोल नहीं पा रहा था मैं। क्या सोचती हैं लड़कियां, क्या सोचती हो तुम, क्या सोचती हो? अभी तो मैं ये मैं सोच कैसी रही हूँ दिखती कि हूँ, मैं ये ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमाका हूँ, इसके अच्छा, अलावा क्या सोचते हो? वी हैव टू रैप अप इन वी हैव हाँ, टू अभी मैं ये सोच रैप रही अप हूँ, इन 10 देखो मिनट्स। कितने फोकस्ड रहना पड़ता है ना, तुम लोग फोकस भी नहीं रह सकते हो। सो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि जो डिमोनेटाइजेशन का टॉपिक है, कहाँ पहुंचा? डिड यू गाइस शेयर ऑल द नहीं, थॉट्स? आप हाउ चली डिड गई यू थी डू तो इट? आप चली गई थी, आपने सुना ही नहीं। अब आप रिकॉर्डिंग में जब हम लोग यूट्यूब पे इसको पोस्ट करेंगे तब सुनिएगा। सुन लूंगी, बट आर आई यू होप, गाइस, डिड यू गाइस से व्हाट यू वांटेड टू से? ऑफ कोर्स, एटलीस्ट मैंने तो वो कहा जो मुझे कहना था। और मुझे मतलब जब तक कि मैंने कहा ना, मैं जब तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया में रह रहा हूँ तब तक के मुझे कहने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई एम फाइन विद इट। ओके, नहीं सारी थॉट्स पुट इन की, मतलब बेसिकली यही है ना कि दिस इज व्हाट एज अ ऑलमोस्ट नॉर्मल पर्सन, एज अ अब नॉन ये एक बार पॉलिटिकल की बात पर्सन, नहीं दिस है इज व्हाट ना, आई थिंक अबाउट इट। हाँ। लेकिन हम सिर्फ टॉपिक का तो नाम दे रहे हैं कि मतलब ये टॉपिक है, फलाना है, ढिमाका है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर मतलब वो 10 बार में कहना पड़े या 10 सेशंस करने पड़े या 10 बार ट्रू, लाइव ट्रू, आना पड़े। यही मैं भी बोलना 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 बिल्कुल। टॉपिक सिर्फ नाम के लिए कि कुछ ना कुछ तो लिखना ही डिस्क्रिप्शन में, तुम कुछ भी लिख सकते हो, और उस डिस्क्रिप्शन में वो टॉपिक से अलग भी बात हो सकती है, जो भी हमारे दिल में आएगा हम वो करेंगे, क्योंकि हम पेड नहीं, हमको कोई पैसे नहीं दे रहा, अपनी मर्जी की बात है। बिल्कुल। कभी कभार हम कतियापे की बात करेंगे, नो डाउट, लेकिन कभी कभार हम बहुत काम की बात करेंगे, ये पक्की बात है। नहीं, मेन भाई प्रॉब्लम ये है ना, आजकल चूतियापे नहीं होते हैं भाई। आजकल भाई लोगों के मुझे पास तो लगता है चूतियापे करने का आजकल टाइम सिर्फ नहीं चुतियापे होते, पहले क्या होता था, पहले एक कॉम्बिनेशन था, एक बैलेंस था, चुतियापा और समझदारी साथ साथ है। चलते थे। अब साली समझदारी तो गायब हो गई, अब लोग चुतियापे की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, मतलब उसमें शान समझ रहे हैं, 50 आदमी का एक आदमी को मार दिया, क्या शान है, हाँ, ये चुतियापा है। हाँ, हाँ, फिर उसके बाद चला अल्लाह अकबर, नहीं तो मैं चलाएंगे इसको रिलीजियस पे लेके जय नहीं श्री जाऊंगा, राम। नहीं नहीं, मैं रिलीजन पे लेके नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, मेरे हिसाब नहीं से नहीं, ये मैं बता चुतियापा है, रहा हूँ, मैं भी बता ही रहा हूँ भाई, मेरे हिसाब से ये चुतियापा है, मेरे मैं हिसाब भी से ये बता ही रहा चुतियापा हूँ है। भाई भाई। मैं ट्रेन में बैठा बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ, अब एक आदमी से बात हो रही है, अब मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मेरी अपना सोच है, मेरा अपना ख्याल है, मैं उसको रख रहा हूँ, सामने वाला अपनी बात रख रहा है, पांचवें आदमी को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, वो लड़ने भाग रहा है, क्यों, ये चुतियापा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये चुतियापा हाँ, इसका दो रीजन है। एक रीजन होता है जो फिगरेटिव होता है, ठीक है, जो लोग जस्ट बिकॉज लोग कंटेम्पलेट नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज लोग सोच नहीं पा रहे हैं। पहले जमाने में क्या होता था ना, जब कोई प्रिंसेस का, राजकुमारी का शादी होता था, ढिंडोरा पीटा जाता था, ठीक है, और वही सब गांव के लोग विश्वास करते हैं, ठीक है। आज भी हम लोग वही कर रहे हैं, कुछ 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 चीज का ढिंडोरा पीटा जाता है और वही चीज हम लोग यकीन कर लेते हैं, इसीलिए वो बंदा इसमें प्रॉब्लम आपसे, नहीं वो है पांचवा बंदा। भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मेरी मर्जी, मैं शाहरुख खान को पसंद करूं, मैं सलमान खान को पसंद करूं, मेरी मर्जी है ना, कोई मुझे आके ये नहीं बताएगा ना, नहीं नहीं अब ये तीनों नहीं, तुम्हें से अक्षय कुमार को पसंद करना है, कोई मुझे आके ये थोड़ी बताए। नहीं, प्रॉब्लम 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 ये है प्रॉब्लम लोग ना, प्रॉब्लम बता रहा हूँ यार। भाई प्रॉब्लम ये है कि लोग, अगर उनको शाहरुख खान पसंद है तो वो ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि सलमान खान को कैसे पसंद कर रहे हो, तुम कर ही नहीं सकते हो, सलमान खान चूतिया साला, वो नहीं कैसे नहीं तुमने नहीं पसंद कर नहीं लिया, नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, भाई ये मेजर प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है। नहीं है, प्रॉब्लम है, नहीं बता रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम ये नहीं है, रूट कॉज क्या है मैं बता रहा हूँ। रूट कॉज ये है, पहले जमाने में भी था, कोई देव कोई देवानंद को पसंद करते थे, फिर आया राजेश खन्ना वर्सेस अमिताभ बच्चन, ठीक है, भाई मैं एक सेलिब्रिटी को सिर्फ बहुत नाम ले रहा हूँ, लाइक, ये कुछ बातें अगर छुपी रहें तो ज्यादा नहीं नहीं, मैं बेहतर समझ रहा हूँ, है। हाँ, हाँ, मतलब ठीक है, तो होता था, लेकिन क्या था पहले जमाने में, वही जो टाइम है ना, द टाइम टू कंटेम्पलेट, टाइम टू थिंक, ये थॉट प्रोसेस, जो मेरा अगर कोई फेवरेट हो सकता है, तो किसी और का कोई और फेवरेट क्यों नहीं हो सकता। ये जो कैपेसिटी है हम लोगों का टू थिंक एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस कॉन्स्पिरेसी, दैट हम लोगों को इतना इंटरैक्टिव, राइट, as science is developing, so is psychological science, right, जो science which is related to psychology, so is from Freud's psychoanalysis and to the psychological experiments that is done today is way 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 ahead, ठीक है।
So we are being given toys which are so distracting and so interacting. Is it useful? No, that is a problem. It is also useful, but it can be equally distracting. And it is human nature that we will use the distracting aspect of it more rather than not. We will use it much more frequently, right? सो हम लोग का जो ये कंटेम्पलेशन का टाइम था, जो यार मेरे आप जैसे बोले यार कोई शाहरुख खान को पसंद कर, मैं सलमान को पसंद कर, कोई शाहरुख को पसंद क्यों नहीं? ये जो टाइम थिंकिंग है वही चले जा रहा है। या तो अभी जो ट्रेन में आप जा रहे हैं ना, अगर मुझे ना सलमान बहुत पसंद है, कोई और जिसको शाहरुख पसंद है उसको ये राइट मिल जाता है कि मुझे आके मार सकता है, उसको हाँ, राइट मिल गया है कि मुझे मतलब चिल्ला सकता है। मैं बता रहा हूँ। तो उसका ये जो थॉट प्रोसेस है ना, उसका थॉट प्रोसेस में ये लॉजिक है ही नहीं। उसको लग रहा है सलमान को कोई कैसे पसंद कर सकता है, मारो इसको। और यही थॉट मेजर प्रोसेस प्रॉब्लम है कि आप किसी को सोचने से नहीं रोक सकते, राइट, आप किसी की सोच पे काबू नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, आपको अगर सलमान पसंद है, फाइन, फेयर इनफ। मुझे प्रॉब्लम नहीं है आपके सलमान को पसंद करने से, मुझे प्रॉब्लम नहीं है आपके अक्षय को पसंद करने से, मुझे प्रॉब्लम नहीं है आपके कोई भी सेलिब्रिटी उसको पसंद करने से। तो आपको प्रॉब्लम क्यों है मेरे किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी शख्स को पसंद करने से, क्यों है? एक और चीज, आई डोंट नो वेदर पीपल थिंक अबाउट इट और नॉट, आपका नेस, जस्ट बिकॉज मैं किसी एक को पसंद कर रही हूँ, इट डजंट ऑटोमेटिकली मीन कि मैं दूसरे को डिसलाइक कर रही हूँ, राइट? It's if there are apples and oranges, just because मुझे oranges पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे apple जिसके अंदर मुझे बुराइयां नजर आ रही हैं मैं उसको dislike कर रही हूँ. I just prefer oranges more. तो जो मेरे साथ बैठा हुआ apple पसंद कर रहा है, वो इस बात से भी शायद हम लोग बहुत annoyed हो जाते हैं कि इसको जरूर apple में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, ये इसके खिलाफ है. पर तुमको वो चांस ही नहीं देगा, एक चीज है ना तुमको वो चांस ही नहीं देगा ना, अलीना, एक चीज उसका है ना, पहले ही मार देगा तुमको। अलीना, जैसे हमें ये राइट है कि हम क्या चीज पसंद करें, एप्पल और ऑरेंज में से कुछ भी, तो वैसे ही हमको एक और राइट है हम क्या चीज ना पसंद करें। True. एग्जैक्टली, इसे कोई नहीं छीन सकता हमसे, ये हमारा राइट है कि हम ऑरेंजेस दैट इज नहीं व्हाई आई पसंद वाज, करते, फाइन, सो व्हाट, सो व्हाट। और इसीलिए मैं बोल रहा था, अब जो अगर हम मैं लोग जो कर ऑरेंज रहे को हैं, ये कह रहा हूं कि इसको पील करना पड़ता है, करो फिर मुंह में डालो, दिक्कत, एप्पल धो मुंह में डालो, इजी, ये मेरी पसंद है ना। अंगूर उससे ज्यादा आसान, धो और मुंह में डालो पूरा अंदर एक ही बार में। तो ये मैं अपनी पसंद मैं डिसाइड करूंगा ना, मैं लेजी हूं, ठीक है, मेरी पसंद है ना। अब कोई मुझसे ये तो नहीं और कह यही रहा मैं तुम्हें आई वाज, तरबूज ही खाना, मां क्या पहले काटो फिर खाओ, क्योंकि उसके अंदर हरा और लाल दोनों है। एंड दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग दैट ये जो वीडियो है, ठीक है, ये इसका मोमेंटम ये नहीं होना चाहिए दैट यू बिकम एंटी गवर्नमेंट, you become abusing uh, some particular party. नहीं नहीं नहीं, मैं That is तो not the इनवाइट way. करूंगा, अगर किसी को मम्मी पापा करनी है, मोस्ट वेलकम। नहीं हम कमेंट लोगों को सेक्शन खुला नहीं, हुआ है, कोई कमेंट सेक्शन गवर्नमेंट खुला को हुआ है, मम्मी पापा नहीं हम लोगों का नहीं। What I'm saying is just because हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, या आई एम सेइंग दैट आई एम एंटी गवर्नमेंट, doesn't mean that I am encouraging people to go and create havoc and illegal activities to any government. What I'm saying is, me saying that I'm anti-government, it means that whatever the government is doing, my principles, my thought process is not aligned with it, right? Now, it means that I have to come up with other solutions, and as a democratic party, as a democratic country, I will need to find other alternatives, or we have to make ways by petition. We have to make ways by जैसे कैंडल मार्च हुआ था peacefully, right? We know our rights. हम लोग का जो rights दिया गया है हम लोग legally, we will do it, and we will have for an example, ठीक है, मेरा घर का सामने about 2-3 साल पहले, We do have a right to protest, and none can take exactly, it. And none can take it. हाँ तो मैं बता रहा हूँ, तो वो लाइट खराब था, ठीक है, तो बोला, ठीक नहीं हुआ, तो जो काउंसलर था उसके पास बात पहुंचाया गया, काम नहीं हुआ. Now the right way is not that to go और काउंसलर के घर में जाकर आप तोड़फोड़ करो. What we did is that I wrote a petition to the counselor
एंड उसको मैंने ट्विटर में डाल दिया, ठीक है, और उसका सीसी करके जो एमएलए है हम लोग के एरिया में उसको दे दिया. बिलीव मी, विद इन 2 days it was fixed and till date it is working, right? So this is what I mean, that when you are against something you should question, you should petition, you should do it in a civilized Nobler manner. and in sublime terms. Nobler and in sublime Yes, terms. yes. मैं क्योंकि हम क्योंकि इंसान हैं, बहुत जन को लग सकता है एंटी, क्योंकि हाँ हम बहुत जन इंसान को हैं. हमारे अंदर एक डीएनए से हमें एक दिमाग मिला है जिससे हम सोचते हैं, उसके अंदर फिर हमारा कॉन्शियस राइट माइंड भी है, हमारे साथ कॉन्शियस भी राइट जुड़ा है, बहुत कुछ चल भी रहा होता है और हम रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन वो रिएक्शन राइट. उस हद तक होना चाहिए कि किसी को हर्ट ना करे बाय एनी मींस, यानी just नॉट because इवन इमोशनल, just because नॉट इवन revolts, फिजिकल. just because anti-government or revolting words are used in this doesn't mean that you have to do it. And revolt, Renaissance was a revolt, right? How many people died in Renaissance? I mean, how many people did the uh, participants of Renaissance killed? Zero. They were doing their work. Leonardo da Vinci was doing his work, right? He was creating his Michelangelo. He didn't have to kill anybody, and that is what I meant by revolt. ठीक है, तो ये एक चीज है जो सबको क्लियर हो जाना चाहिए. चलो शायद कम खैर, करना चाहिए, मेरे तो ख्याल से काफी टाइम हो गया. अलीना, Wrap it up. आपको कुछ कहना है? नहीं, क्यों? तुम्हारा कॉन्शियस नहीं है, क्या मतलब है इस बात तुम्हारा का? दिमाग नहीं है? अरे कुछ तो बोलो. अच्छा लगा, बुरा लगा, आपका तुम चूतिया थे, तुम उससे बड़े चूतिया थे, कुछ भी बोलो. नहीं, वो तो तुम लोग हो, मतलब एक दूसरे को तुम लोग बीट करते रहते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम. कभी कोई ऊपर चला जाता है, कभी कोई दूसरा ऊपर चला जाता है. मतलब तुम्हें अब यही सोचो, एक लड़का का लड़की तो कहता तो क्या होता, तुम तो फिर एकदम खटिया करा कर देती. नहीं, वो बिल्कुल उस कहते लड़की हैं. को तुम कैसे क्यों नहीं कह सकते हो कहते? ऐसे? तुम लोग कहते हो, यू यूज ऑल कब वर्ड्स, कब? देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज फॉर दैट. तुम पीछे थोड़ी रहते हो, तुम लोग कहते हो. सो माय थॉट्स. But you don't smile about it. You don't smile about it. You contradict, you challenge it. Yeah, that's for How another recording, rude. right? This is for another recording. And yeah, you trust me, you don't. I have roasted Aapka many times on this, so you don't want to do that. पीछे रहो. मैं अभी ये बता रही हूँ आपका, इस तरह के डिस्कशन तो हम कितने कर चुके हैं. अभी मैं ये सोच रही हूँ why this is being recorded the first time. तुम सबको ही पता है कितने डिस्कशन हो चुके हैं ना इस तरह के हमारे आपस में, like बेटा, in a दिमाग की friendly तारीफ करो. environment. So ये मेरे दिमाग की तारीफ करो. पैट माय शोल्डर. वाह वाह, आपका जी वाह. खैर, वो घंटा बना के भेजूं मैं इंच पर. So yeah, we're gonna keep doing this, and I hope इससे कोई तो बेनिफिट मिले, किसी एक No, को I भी मिल think जाए तो बड़ी अच्छी no, बात होगी. नहीं no. अलीना, I think कुछ I बताऊं तो think मतलब सबसे पहले हमको बेनिफिट मिलना चाहिए. वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ. exactly. अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है तो बस इट्स फ्रूटफुल, और अगर नहीं मिल रहा है, दूसरों को मिल रहा है, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सबसे पहले हमें, मतलब I think एटलीस्ट हमारे आसपास I'll के लोग. answer Alina in a different. You precisely mean why now? ये तो 3 साल से हम लोग कर रहे हैं. Why now? Because sometimes you have to take baby steps. Sometimes you have to put on your jacket and you have to walk out of the house. So this is a baby step. And what Aapka said, it will also encourage us to think more, to research about topics more, and to bring out. और पता है एक चीज होती है यस भाई, जब हम बात करना शुरू करते हैं ना, जैसे अभी हमने डिमोनेटाइजेशन की बात करी, अब अगली बार हो सकता है हम कोई और टॉपिक लेकर के आएंगे, तो दूसरों को नॉलेज देने से बहुत पहले, यानी उस स्टेज पे या उस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले, यानी इस वीसी पे आने से भी पहले हमारे पास नॉलेज होती है. Exactly. हमारे पास, मेरे पास, जैसे मैं आया तुमसे बात करने की, चलो डिमोनेटाइजेशन पे बात करते हैं, तो मैंने पढ़ा, मतलब मैं सोचा था क्या बात करूं, क्योंकि सब तो बात कर चुके हैं डिमोनेटाइजेशन के ऊपर. इत्तेफाक से एक चीज मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते एकदम से उमा खुराना आ गई. मैंने कहा ये, अब ये प्रॉब्लम है. उमा खुराना को भूले, जेएनयू भूले, हजारों चीजें और भूले, और डिमोनेटाइजेशन भी भूल गए. हमारे पास एक वर्ड है जिसका नाम है मूव ऑन, आगे बढ़ो, बात खत्म. लेकिन उससे सीखा कुछ घंटा, कुछ भी नहीं.
उससे कुछ हासिल हुआ? हाँ, because people are कुछ हाँ, because people nowadays are not done from moving on from their love life. That's the problem. पहले जमाने में एक गर्लफ्रेंड हुआ करता था, दो गर्लफ्रेंड हुआ, मूव ऑन हो गया। समझ सकते हैं ना यस भाई, किसने क्या किया? किसने A to Z XYZ, मेरा बाप भी अल्लाह जन्नत बख्शे, क्या किया? कुछ किया? हाँ किया। मुझे इंसान उन्होंने बनाया, आपको पैदा किया भाई। मुझे इंसान बनाया जी। भाई। पैदा किया वो तो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब I mean to say, yeah, I मतलब mean to say मुझे that एक इंसान बनाने की कोशिश हाँ, तो की कम से कम, exactly right. ये That is what I सबसे बड़ी meant. बात है। मैं डॉक्टर बना नहीं बना, इंजीनियर बना नहीं बना, IAS PCS बना नहीं बना, सामने वाले को तकलीफ होती है तो मेरा दिल दुखता है, यानी मैं इंसान हूं, और इतना मेरे लिए काफी है। तो ये जो चीज है ना नहीं, लेकिन कभी-कभी दुख देना भी जरूरी है। कभी-कभी दुख देना भी भाई, कौन नहीं देता है? किसी को लेकिन जो इंसान होते हैं ना भाई, वो जान के नहीं देते। हो जाता है, तकलीफें हो जाती हैं। उसका मैंने कभी अलीना को हर्ट कर दिया, वो किया होगा, लेकिन क्या जान के किया? ये प्लान करके किया कि आज अच्छा 7 बजे रात में मैं अलीना से ऐसी बात करूंगा कि वो हर्ट होगी? नहीं, ऐसा एक बार भी नहीं किया। क्या उससे पहले प्लान किया? नहीं किया। यही तो भाई इंसानियत की खासियत है कि जो आपकी कमियां हैं, जो आपकी बुराइयां हैं, अगर वो अनजाने में है, दैट वोंट काउंट। और अगर वही अच्छाइयां कभी-कभी आपको अनजाने में हो रही हैं, दैट विल काउंट। कभी-कभी ना जाने भी करना, मैं I'll give you an example, जाने भी करना। See, I have a dog. So he had food aggression. He was 45, 43. I got him when he was 40. So food aggression. So one part of his rehabilitation, जो उसके पास खाना रहेगा, वो खाना को टच नहीं करेगा, बैठा रहेगा वो। जब तक वो काम नहीं होगा, जब तक वो मेरे तरफ नहीं देखेगा, तब तक वो खाने से उसका ध्यान हटेगा नहीं, तब तक वो खा नहीं पाएगा। Sometimes it used to be 15, 20, 30 minutes. एक बच्चा 3 महीने का बच्चा, ठीक, जिसको मैं लाया हूँ, उसको भूख लग रहा है और मैं उसको खाने नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? ये चीज मेरे अंदर क्या करता था वो मुझे पता है, ठीक है? क्योंकि मैं भी पानी तक नहीं पी पाता, राइट? आज का उसका क्या बेनिफिट है? आज मेरी मम्मी या फिर मेरा भाई जब उसको खाना देता है ना, वो मेरा मम्मी और मेरा भाई को देखता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल गेट बिट बाय अ डॉग इज व्हेन दे आर टेकिंग द फूड अवे। जब खाना हो गया, वो प्लेट जब लेते हैं ना, तब कुत्ता बाइट करता है और वो स्नैप कर देते हैं, बिकॉज वो इसका इंस्टिंक्ट है, वो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट, ठीक है? उसको रिहेबिलिटेट करना था, उसके लिए उसको वो पेन देना, जो भूख लग रहा है और मैं खा नहीं पा रहा हूँ, तो इसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है भाई जो तुम एक मुझे चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, किसी का बुरा करना और किसी को डिसिप्लिन सिखाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, हाँ हाँ, मतलब किसी को मैं डिसिप्लिन बता रहा हूँ, सिखाना उसका बुरा करना नहीं है। मान लो अगर मेरा कोई राइट, बच्चा होता, एग्जैक्टली। सपोज मेरा कोई बच्चा होता और वो दूसरे बच्चों को गाली बक रहा होता, या किसी को आगे उसको कतरी माँ का, मेरा नहीं, बच्चा, लेकिन मैं तो बता मैं रहा उसको हूँ, सिखाता, मैं मारता बता रहा हूँ पीटता, अरे प्रॉब्लम। गाली बकी खाल खींच लूंगा तेरी माँ। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, तो मैं इसका उसका बुरा नहीं प्रॉब्लम चाह है रहा ना, हूँ, मेरा आंटी, क्योंकि ये चीज मेरे साथ नहीं, मेरा मेरे मेरा बाप ने किया है। मैं पहले बचपन में बहुत गालियां बकता था, जब बकी सब राइट पिटा, इधर बकी इधर पिटा, और बकना नहीं छोड़ता था मैं। मेरी पता नहीं कौन सी मत मारी गई थी, तो मैं पिटता था, गाली पड़ती थी, गाली देता था, पिटता था। तो वो डिसिप्लिन, फिर क्या अब हुआ, उसका मेरा असर क्या मेरा हुआ? उसका असर क्या हुआ कि जब मैं बड़ा हुआ एस भाई, तो मुझे समझ में आ गया गाली नहीं देनी है, गंदी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती। भले आप दे भले हम, भले आप दे, लेकिन आपको पता लेकिन है, फिर भले ये पता आपको चल पता गया है ना मैं कि गलत कर रहा कहाँ गाली नहीं देनी है। हूँ, एग्जैक्टली राइट, क्योंकि आपको पता है आप गलत कर रहे हैं। तो कहाँ गाली नहीं देनी है, इसको, ये डिसिप्लिन है। लेकिन मेरे आज बाप ने सिखाया। पॉइंट वो नहीं है भाई, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आज हम लोग इतना, मतलब ये बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल, और मैं इसका आपको जेन्युइन एग्जांपल दूंगा, ठीक है? मेरा आंटी है, ठीक है? शी हैज पग, राइट? शी हैज अ फीमेल पग, उसका फूड एग्रेशन है। शी बेट हर ट्वाइस, एक बार नहीं, ट्वाइस। अ पग, छोटा सा कुत्ता है, ट्वाइस। क्यों? जब खाना ले रही थी, ठीक है? व्हेन आई टोल्ड हर दिस, when she's hungry, don't give her food, don't give her food, this is how you have to stand in middle of the food, this is what you have to do. She's like, how can I do it? She's my baby. Because
when you go to YouTube, when you go to Facebook, when you go to different places, everywhere you see about dog rehabilitation and dog training. This is that you don't hurt dogs, you don't give pain to them, you don't discipline them, you reward them. हम लोगों के अंदर ये आप जो बोल रहे हैं ना, मैं उसका लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ. हम लोग डिसिप्लिन का मतलब ही भूल गए हैं. So sometimes we do have to hurt people नहीं 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 so that they could. भाई, वही ये मैं चीज बता मैं रहा नहीं ना, कह तो we have to be sometimes we have to cruel भाई, ये with चीज people. मैं नहीं कह सकता. हो सकता है मेरे आने वाली आल भूल जाए, मैं उसको डिसिप्लिन ना सिखा पाऊं, ये मेरी कमी होगी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डिसिप्लिन नहीं आती, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे मार मार के सिखाई है. उन्होंने मुझे मार मार के हाँ, सिखाई है कि कहाँ पे कैसे रहना है, कहाँ पे तहमत हिलना भी नहीं चाहिए अपनी जगह से. ये बाप ने मार मार के सिखाया. कहाँ पे कैसे खड़े होना है, you कैसे can. बात करनी है, किसको ऐसी बात नहीं कहे, वो सब सिखा के गए. वो मतलब वो डीएनए में घुस गया, माँ की आंख जीन में घुस गया मेरे. अब चाह के भी मैं नहीं कर पाऊंगा. तो वो वही चीज है ना कि मतलब माँ बाप क्या करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वो कल भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो आज भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आने वाले जब तक के ह्यूमन रेस दुनिया में रहेगी तब तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही रहेगा, क्योंकि वही इंसान बनाते हैं. हमारे माँ बाप हमको मतलब पाल पोस के जब बड़ा कर रहे होते हैं तो एक हमको इंसान बना रहे होते हैं, हमको सिखा रहे होते हैं कि तुम्हें जिंदगी कैसे जीनी. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके माँ बाप को यही करना चाहिए जो मेरे माँ बाप ने किया, नहीं, जरूरी नहीं. अलग अलग तरीके हैं. होता लीना का अपना अलग तरीका होता, तुम्हारा अपना अलग तरीका होता, तुम्हारे माँ बाप का तरीका अलग हो, लेकिन सिखाना कर मतलब काम वही, रूट कॉज वही है, इंसान बनाना है. गलत इंसान नहीं बनना चाहिए. चोर नहीं बनाना है, डाकू नहीं बनाना है, मर्डरर नहीं बनाना है, किलर नहीं बनाना है, इंसान बनाना है. मतलब खुद मारना तो दूर की बात है, अगर कोई और भी मार के गया तो आंख में आंसू होने चाहिए, उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए. कि आप सोचिए, आप ठीक है, तस्वुर चलिए करिए आज. कि उमा खुराना, और वाकई भाई सोचने वाली बात है, कोई नहीं सोच रहा. मुझे नहीं पता कोई सोच रहा नहीं, मैं नहीं सोच रहा था, मुझे जब देखा तब मैं समझ में आया. उमा खुद से कम 400-500 लोग घिरे हुए मर्द, और उसके कपड़े फाड़ दिए गए. इस क्या तुम फील कर रहे हो चीज जो मुझे हो रही, क्या गुजरी होगी उस औरत के ऊपर. हाँ भाई, इसीलिए आपको तब बोल रहा था ना, चाहे वो, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ, तो एक औरत का तब क्या गुजर रहा होता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मुझे और जरूर वो पता भी है वो जो मर्द मैथ को की क्या फील टीचर है, होता है. टीचर है वो, हमारी गुरु है. इसीलिए तो मैं आपको बोला ना, वो फील कर रहा था तभी ना मैं आपको बोला. जो अगर मैं उस जगह होता तो मुझे शायद सालों नहीं, और हम भूल गए. मैं पता नहीं, मैं जी नहीं सकता. कैसे, मतलब कैसे, या ये टॉपिक मतलब इसमें मायने नहीं रखता, चलो हो कैसे. इसका मतलब सीधा ये है एस भाई कि हम हमारी जो इंसानियत है ना उसका लेवल कम होता जा रहा है. ऊपर वाले ने जो हमको बनाया था, जो इंसान बनाया था ना, जैसे बना के भेजा था, उससे गिरते 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 हम जानवरों के लेवल पे आने वाले हैं. शायद उससे भी नीचे गिर गए. अगर हम ये सवाल वी हैव पूछे कि बिकम कैसे, ह्यूमन विदाउट मतलब कैसे ह्यूमैनिटी. रेलिवेंट है इस टॉपिक के ऊपर, आप उमा खुराना को ले, वो किसी भी टॉपिक में आ सकती है, क्योंकि उसके जिस्म के कपड़े फाड़े गए. गाइस तुम लोग रैप अप करने वाले थे ना, शायद रैप अप कर लो. हाँ हमारा हाँ तो ठीक है, चलो अगले 5 घंटे भी चलेगा ना डिस्कशन, यू नो दैट. चलो चलो ठीक ठीक है, चलो इसको है. ओके, रैप अप करते हैं. बाय, चलिए टेक गाइस, केयर फिर मिलते हैं. एंड हैव अ गुड डे. टेक केयर यू गाइस. बाय ऐसे बाय, रैप अप स्टे करते हैं आपको हैं? और कैसे चलो करते एसिस को हैं, सिखाएं कैसे रैप अप करते हैं. नहीं आप सिखाएंगे, मुझे तुमसे सीखना है प्लीज. एग्जैक्टली. चलो इस अलीना, हम डिस्कशन दोनों को. को सिखाओ कि रैप कैसे करते हैं. नहीं, तुम लोग सिखाए जाने के काबिल नहीं रहे अब. अच्छा तो बता तो दो कैसे रैप अप करते हैं, ताकि आइंदा से वैसे ही करें हम लोग. नहीं, मैं प्लीज. सिर्फ ये कह रही हूँ, ये क्या तुम बाय बाय कह के वीसी से हटने वाले हो तुम? क्या पुच्चिया दूं मैं यहाँ पे, मुआ 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 करके जाऊं? नहीं, तुम कैसे हटो करूं मत, रैप अप, वीसी से मत हटो. तो फिर कैसे करूं रैप अप? ओके लेट्स. ओके गाइस, ओके, चलो. जो ही मेरी बात Yeah, फिनिश let's. होगी यू स्टॉप रिकॉर्डिंग. ओके एस. ओके सो गुड बाय. लेट्स फिनिश दिस Done. वन हियर. Done. और नेक्स्ट वी गोना डू मोर डिस्कशंस, मोर टॉपिक्स इन बिटवीन. हमारी बीएसबी होगी. सो अगला ऑलराइट. टॉपिक होगा वुमेन एम्पावरमेंट. जो हमारा अगला अच्छा, टॉपिक होगा वो होगा वुमेन एम्पावरमेंट. बता दे, चीख चीख अब के सबको देखो बता सुनाओ. दे. नहीं मैं इनको बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग है ताकि अगली बार आ जाए. ओके अब चले, उसके बंद अंदर करो मतलब ऐसा नहीं है जैसे रिकॉर्डिंग. वुमेन एम्पावरमेंट जैसे आज हुई हम लोग, क्या उमा खुराना बीच में आ गई तो कोई भी आ सकता है, लेकिन वो टॉपिक ऐसे ही होगा.
एस बंद करा कि अभी नहीं करा, ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, अभी ओके, चल रहा है। जो देख रहा है, बाय। बाय बाय। अच्छा ये